According to UPSC Civil Services Examination, UPSC provides 3 tiers facility for Civil Services Examination. Here we discuss the preliminary examination point of view. We discuss entire syllabus word by word. In preliminary examination, we said what exactly the preliminary examination is, objective type and cut-off and preliminary examination who generalizes the syllabus, for example, general history, general knowledge, or everything we discuss in detail. Here the second stage is mains of UPSC. Mains is something you have to understand, you have to write answers in mains. What UPSC provides the syllabus, we are going to discuss word by word on each and every paper. We have 7 papers in mains. Number 1, we have 4 GS paper. GS means general studies. General studies paper, 4 papers, and we have 1 optional paper. In 1 optional paper, they divide 2 papers. In two papers they divide, and we have 1 essay paper. Essay paper could be in different events. Essay could be any point, but essay has no much syllabus in essay. When we talk about, we have English paper, we have 1 language paper. Language could be any language. You will see in UPSC notification they have provided a few languages in notification. And essay, we have so many proverbs we will provide, and we discuss how to answer essay. In the answer writing, we'll discuss on essay. So now here we can discuss on 4 papers of GS, and also if time provides everything pro to us, then we'll discuss even optional papers as well. So what UPSC says, the 4 general studies papers. In 4 general studies, the first paper of general studies, we are going to discuss the detail of syllabus word by word. Me and Vishal sir will discuss in detail. So Indian culture, the first word of UPSC GS paper 1 is syllabus. What UPSC says, the Indian culture. Vishal, Indian culture. See the word Indian culture. Indian culture जो UPSC में आपको देखने को मिलता है. UPSC divides Indian culture in 3 basic pillars. The first one is art forms. See, the Indian culture. Culture means what? The way your costume, the way what is your hobbies or food. For example, food habits. Culture depends on your region. Culture depends on region, location, and location, what geographical aspects. Yes, everything. Clothing aspects. So many things are so culture. you need to understand why you are going to study culture for UPSC point of view. You should study culture on UPSC point of view, not के आप किसी culture के किसी एक, because culture says everything. For example, your costume, your fashion, your entertainment, your surroundings, your folk, your like whatever it is, everything comes under your life, your living style. And UPSC also mentioned this part from ancient till modern time. Modern times. मतलब आपको ancient period से लेकर के modern times तक जितना भी आपका aspect हो सकते हैं, cultural aspects हो सकते हैं, वो आपको सारे ही अपने कवर करने हैं. लेकिन सिंपल बेसिक चीजें करनी कवर, आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करना है. For example, in culture we have so many forms. Art form. UPSC ने 3 फॉर्म में इसको डिवाइड किया है. Yes. जैसे कि इसमें आर्ट फॉर्म का है, फिर लिटरेचर के बारे में का है, आर्किटेक्चर के बारे में बोला है बच्चों को पढ़ने के लिए. तो अभी हम उसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, बता देते हैं. बिल्कुल. In art form there are 3 pillars. One is visual form. Visual arts. One is performing arts. One is literary art. So Vishal, what is like how to understand? See, if you ask me how you understood the visual art, see what I suggest for students is, for the first time it just came thought into my mind, like I roam around all the time, so whenever I had time I used to roam around. तो आप एक काम करो, आप कन्नड़ में एक कहावत है कि देशा सुत्तु अथवा कोशा बोधु, मीन्स या तो आप बैठ के एक लाइब्रेरी पूरी पढ़ लो, या तो आप पूरा देश को घूम लो, आपको वही नॉलेज मिलेगी. See when you say visual art, जो आप देख के समझ सकते हो, तो अब अगर आप दिल्ली घूम लो तो आप UPSC के कम से कम 2-3 सवाल के जवाब आराम से आप दे सकते हैं, आराम से. हाँ, अगर पूरा इंडिया घूम लो तो then you will be mastered in your art and culture, because you will see it from your naked eyes and you will understand. तो now Vishal, आप प्लीज बताइए कि what is a visual art? Visual art जैसा कि मैंने बताया कि what people should study. हाँ, yes. तो आप इसमें आर्किटेक्चर का पार्ट आता है, आर्किटेक्चर क्या हो सकता है,
कंट्री में वेरियस आर्किटेक्चर फॉर्म है, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर्स, बहुत सारे टेम्पल कैसे होते हैं पता ही होता है लोगों को। तो आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें और भी चीजें हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि आर्किटेक्चर में ऐसे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारा कवर होता है। Vishal, I tell you here one important point about visual art. In India, in the world actually, there is something called World Heritage Sites. Yes. So most of the places of like our ancient architecture has been protected by World Yes. Heritage Site. For example, our Humayun's tomb है और बहुत सारी जो ताजमहल, रेड फोर्ट, yes, and so many temples are there in yes, so many even cities yes, also protected literature by kind of thing, yeah. World Heritage. What is that? तो ये सारी चीजें वो है जो हमारा एक्चुअल में पार्ट ऑफ कल्चर है, हमारा कल्चर का एक Recently भी बहुत शायद बड़ा दो पार्ट सिटी है। उसमें ऐड भी करी गई थी, एक साउथ की थी, एक नॉर्थ की थी। We'll discuss Kozhikode. in heritage sites. We'll वो discuss discuss in करेंगे बाद में आपसे। detail. So here, when we talk the second line of, second pillar is performing art. You know, performing art something you can say what you perform. You say dance. इस जिसमें आपके नवरसा आ जाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म आ जाते हैं, और आपकी मतलब बहुत सारे हर एक स्टेट के रीजनल के वेदर इट इज कुचिपुड़ी, वेदर इट इज दिस दैट, मतलब कथकली, हर एक चीज के पूरे फॉर्म्स आ जाते हैं। भरतनाट्यम हो गया, हर एक डांस के पूरे फॉर्म्स आ जाते हैं इसमें आपके कौन से रीजन में कौन सा डांस आता है, और वो ये भी आता है इंस्ट्रूमेंटल डांस फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, फोक डांस, यस, फोक डांस आते हैं। और जो फोक डांस आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द फोक डांस इज वेरी रीजनल। यहाँ से हम भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, लावनी जो होता है वो गिद्दा हो गया, ये सारे आपके फोक डांस हैं। तो फोक डांस जनरली एक चीज आपको समझने की जरूरत है, फोक डांस जनरली जैसे कि फसल काट रहे हैं, फसल बो रहे हैं, तब फोक सॉन्ग्स होते थे। उस टाइम पीरियड में जो लोग अपने जो लोकल लोग जो होते हैं, फार्मर्स कम्युनिटीज होते हैं, जो लोकल ट्राइब्स होते हैं, सेलिब्रेशन अपना सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें सॉन्ग होते हैं, डांस होते हैं, ये सारा जो है वही फोक डांस है। वो फोक डांस है, वो बहुत लोकल लेवल पे होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक चीज और कवर करी है मैम, इसमें इन्होंने वेरियस थिएटर्स के भी फॉर्म दिए हैं, थिएटर्स जैसे कि आपने देखा होगा थिएटर्स, यस एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। इसमें आपको मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हिच फॉर्म इज वेयर, बिकॉज वंस यू बिकम अ सिविल सर्वेंट, आपको पता होना चाहिए कि गिद्दा कर्नाटक में नहीं होता है ना, भांगड़ा इसमें तमिलनाडु में नहीं होता। यू शुड अंडरस्टैंड वेयर इट इज फ्रॉम, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई ये होता है, तो यू हैव टू, आप उसको सपोर्ट करना है, आपको, आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठे हो, आपको सपोर्ट करना है। पीपल एक्सपेक्ट के व्हाट इज योर कल्चर, उनके कल्चर। तो व्हाट आई सजेस्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, कभी मौका मिले तो आप मौका क्या, आई सजेस्ट यू टू डू इट, इज मैंडेटरी, कि आप जो हमारा 26 जनवरी का जो परेड होता है ना, वॉच इट केयरफुली एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। आपको पढ़ के भी बहुत सारी चीजें इतनी अच्छे में समझ में नहीं आएगी। मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ। हाथी को आप पढ़ नहीं सकते, आप हाथी को देख के पता कर सकते हो कि हाँ ये हाथी है, या तो उसकी फोटो देखो, या तो अगर पॉसिबल है तो उसको प्रैक्टिकली देखो, तभी आपको पता चलेगा कि हाथी कितना बड़ा होता है। कोई बोलेगा हाथी का सूंड लंबा होता है, कोई बोलेगा हाथी, जैसे कि वो 5 लोग नहीं थे जो हाथी को समझ रहे थे, एक ने हाथी का पेट छू के देखा। छोटी सी स्टोरी है, द ब्लाइंड, फाइव ब्लाइंड, यस, छोटी सी स्टोरी में किसी ने हाथी को छू के देखा, दीवार जैसा दिखा, किसी ने पैर छुआ तो उसको पिलर लगा। यस, वो आपको देख के पता हो सकता है, देख के पता हो सकता है। वो देखने के लिए सारे कल्चर, सारे डांस फॉर्म देखने के लिए आपको सबसे बेहतर है कि आप अपना 26 जनवरी का रिपब्लिक डे परेड देख सकते हैं। विजुअल आर्ट्स भी, यस। विजुअल आर्ट्स में मैम हमने एक चीज बतानी यहाँ जरूरी है कि विजुअल आर्ट में यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आते हैं। पहला कि मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर, दूसरा आपका स्कल्पचर है, तीसरा वहाँ पे पेंटिंग है, पेंटिंग दिया गया है कि आपको पेंटिंग्स कौन सी पता करनी है। थर्ड पिलर इज पेंटिंग, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे पेंटिंग स्कूल, मीनाकारी है, एक पच्चीकारी हुआ है, बूंदी स्कूल, बनीठनी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, so many various पेंटिंग। जैसे बिहार में आपने पढ़ा होगा मधुबनी पेंटिंग, ऐसे बहुत सारे पेंटिंग स्कूल हैं। तो इसमें आपको एक चीज और देखनी होती है, paintings have developed pottery and painting have developed during Mughal era।
तो ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब फॉरेन इन्वेडर्स थे एंड दे गॉट टू लर्न सो मच। क्योंकि ये मुगल एरा, ये भी तो देखो मुगल आए कहाँ से थे, देयर वाज नथिंग, ड्राई कोल्ड डेजर्ट्स, उस रीजन से आए थे। तो यहाँ पे उनको इतनी प्रॉस्पेरिटी थी, दे वांट टू डेकोरेट मोर एंड मोर एज मच एज पॉसिबल बाय देम। तो वो कर रहे थे पेंटिंग्स को लेके, और जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स का तो बहुत ज्यादा, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी इन रिसेंट पास्ट, इन प्रिलिमिनरी आई थिंक ना, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा था पेंटिंग्स को लेके। जैसे कि हम बात करते हैं स्कल्पचर की, स्कल्पचर कौन कौन से हो सकते हैं? आपने बहुत सिंपल एक एग्जांपल पढ़ा होगा हड़प्पन पीरियड का, वहाँ डांसिंग ब्रॉन्ज जो गर्ल का एक एग्जांपल दिया जाता है, जो लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई गई थी, बहुत फेमस एग्जांपल है। तो स्कल्पचर मींस क्या है, वो आप समझ सकते हैं कि एक पोस्चर में कुछ फ्रेमवर्क में बनाया गया है, उसको मेथड के यूज करके आपको बनाया गया है, कास्टिंग बनाया गया, मोल्ड के थ्रू बनाया गया है, सांचे में ढाल करके बनाया गया, तो वो स्कल्पचर वैसे बनते हैं। तो ये भी आपको थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे डिफरेंट टाइम पीरियड्स के, जैसे कि हड़प्पन टाइम पीरियड, फिर आपका मॉडर्न टाइम पीरियड, फिर आपके बाकी टाइम पे शुंग टाइम पीरियड। In Mauryan time period, inscription started. What UPSC says, visual art में inscriptions भी आ जाते हैं, क्योंकि वो inscription किसको कहते हैं, जो किसी लैंग्वेज को पत्थर पे तराशा गया, शिल्पकारी जिसको बोलते हैं ना, शिल्पा मतलब पत्थर पे जिसमें तराश के लिखा गया, क्योंकि at that time they were aware के पेपर और पेन या पत्तों पे लिखने का कोई वो नहीं होता, कॉपर प्लेट पे लिखा गया था, कॉपर प्लेट्स पे लिखा गया था। तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए दे यूज्ड स्टोन्स एंड कॉपर प्लेट्स, एंड आल्सो दे यूज्ड सील्स, seals of different metals and different stones, bronze seals and silver and gold seals. They were the resources we can say to understand their history. And का एक जो आप बात करें सील्स का एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, और ये शुरुआत यहीं से होती है सील्स की। हड़प्पन टाइम पीरियड में वहाँ पे आपकी सील्स यूज करी जाती थी, मोहरे, और वो सील्स बनी होती थी मेनली स्टीएटाइट की। स्टीएटाइट एक मटेरियल था, उसकी बनी होती थी। yes, 100%। तो ये बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है कि कौन से मटेरियल की सील्स बनी, जैसा कि मैम आपको बता रही थी कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, मार्बल है, स्टोन है या मेटल है, डिफरेंट। मैम आपको एग्जांपल देती है इंस्क्रिप्शन का, इंस्क्रिप्शन आपके वॉल्स पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट, जैसे साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो टेम्पल की वॉल्स पे काफी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। तो एंड इन एलोरा you can see paintings, inscriptions, paintings on like mountains, caves, and Ellora and Ajanta. yes वहाँ पे माउंटेन में केव बनाए गए, विहार बनाए गए हैं। तो विहार क्या होते हैं, वो बुद्धिस्ट मॉन्क के जो रहने के प्लेसेस होते हैं, रेनी टाइम में आप वहाँ रह सकते हैं जाके, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो विहारास में वहाँ काफी स्कल्पचर और पेंटिंग्स वहाँ बनाई गई हैं। After art forms, what UPSC says is literature. Yes. Literature, we have, I tell you, before I start discussing entire literary work, for the first time, India was having the history of invaders. Yes. India was not having a peacefulness here. Yes. Though we were peaceful here, but still invaders were invading and like destroying, doing a lot of destructions here in temples, because वो वक्त ऐसा था कि हर कोई टेम्पल को सीक्रेट मानता था, जो कि आज भी मानते हैं, वो बात अलग है। एजुकेशनल मठा होता था, जो एजुकेशनल हब्स होते थे, एक तो हाँ, तो लोग क्या करते थे, जो लोकल लोग थे वो क्योंकि टेम्पल के पास ही एजुकेशनल हब जो मठा होता था, वो एजुकेशनल सेंटर जिसको कहते हैं, वो होता था। तो वहाँ पे सारे अपने रिकॉर्ड्स रखते थे, लिटरेरी वर्क्स वहाँ पे रखते थे। तो जो भी इन्वेडर आते थे तो वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते थे। We have so many examples. लिटरेरी वर्क्स को डिस्ट्रॉय किया जाए ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो आते थे इन्वेड करने, तो साथ में वो डिस्ट्रॉय भी कर देते थे, प्रोसेस में वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, कर देते थे वो टेंपल्स, रिलीजियस सेंटर को, मठास जैसे आप बता रही हैं, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। बहुत फेमस आपके एग्जांपल है तक्षशिला का, तक्षशिला को किया गया डिस्ट्रॉय। फिर आपका बिहार में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, एंड आल्सो नालंदा को डिस्ट्रॉय किया गया, पुरी जगन्नाथ को डिस्ट्रॉय किया गया। तो मतलब इस टाइप से काफी एजुकेशनल, तो ये सारे सेंटर्स को इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वी नेवर हैड लिटरेरी वर्क ऑफ आवर ओन। एक्चुअली इन इंडिया द एंटायर हिस्ट्री हैज बीन रिटन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या होता था, एक बंदा लिखता था तो उसके साथ 10 लोग उसको कॉपी करते थे, बिकॉज
that was the only process of writing. Printing press नहीं थी, printing press नहीं थी. That 18th century. Discovery नहीं हुई थी printing press की. I mean 12th century. 12th century. 18th century में printing press आपकी बन गई थी. उसके पहले का पार्ट जो था उसमें आप जो बता रहे हैं कि वो ये वैसे. तो Fort William College has been constructed in 18th century. 18th century. 18th century में वो literary work start हुआ जिसमें history, polity, Indian history especially and entire literature of India even in different Translation languages. उसमें शुरू हुआ था. नहीं literature लिखा भी गया था. See, even Mughal period there was a work, but actually what we use, government of British government did that work. तो जो आज की डेट में जो availability of history, economy जो इंडिया की है ना, जो ancient है, तो उसके पहले जो भी लिखा गया था वो बस बुक्स रह गए थे. उसको किसी ने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया. लेकिन जो ब्रिटिश ने लिखा 18th सेंचुरी में फोर्ट विलियम कॉलेज में, उसको एक्चुअली मान्यता दी गई कि हाँ ये इंडियन हिस्ट्री है और मतलब कल्चर है. उसके बाद में देयर आर सो मेनी रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस अबाउट मौर्यन डायनेस्टी एंड like what we have so many hundreds of dynasties, 2%, so many developments took place and so many universities did so much research. चलो वो बात की बात है. लिटरेरी वर्क में मेनली इसमें क्या देखा जाता है? इसमें वैसे भी हमको पता है कि हिस्ट्री को हम 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो वैसे लिटरेरी वर्क्स को भी जैसा आप बता रहे थे कि ब्रिटिश, तो वैसे भी हिस्ट्री को भी एंशिएंट आपके जो लिटरेरी वर्क्स हैं एंशिएंट में, मिडिएवल में एंड मॉडर्न में आप डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप उनको पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे देखते हैं सबसे पहले इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट या जो इंडिया है उसमें हम लोग पढ़ते हैं संहितास और श्रुतिस. तो संहिता में आपके आते हैं वेद, अरण्यकास, आपके एपिक्स, महाभारत और आपके रामायण हो गए. इसी तरह अगर आप साउथ में देखेंगे तो संगम कल्चर भी वहां पर रहा है, संगम डायनास्टी. उसमें भी 2 बहुत बड़े एपिक्स लिखे गए, मणिमेगलाई, शिल्पाधिकारम. तो ये 2 उसमें लिखे गए आपके. फिर मिडिएवल पीरियड आपका आता है, उसमें भी आपके बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स लिखे गए आपके. उसमें भी काफी के जैसे भक्ति लिटरेचर एंड सूफी लिटरेचर लिखा गया उसमें. yes. तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं. फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया. हिस्ट्री लिखी, नई हिस्ट्री भी लिखी, पुराने को ट्रांसलेट भी किया. मनुस्मृति का जैसे ट्रांसलेट हुआ. जी बिल्कुल. तो मनुस्मृति का हुआ, इस्लामिक लॉस का ट्रांसलेशन हुआ, जो पहले पर्शियन में होते थे उनको इंग्लिश में लिखा जाने लगा. शरीयत. हाँ. फिर ब्रिटिशर्स ने आपके भाई सारे लॉज बनाए, उसी को ध्यान में रख करके CRPC, IPC, एविडेंस, डिफरेंट लॉज बने. तो ब्रिटिश का भी काफी कंट्रीब्यूशन है. Even British understood the demographic temperament because what they follow the culture. Even British understood. Even they have adopted so much culture of India and they contributed. See, whatever they invaded us, apart from that, their contribution also important. Means GS के पेपर 1 का जो पहला जो टॉपिक था इंडियन कल्चर था और we discuss in detail Indian culture. तो जो सेकंड टॉपिक है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? एंड ऑफ 17th सेंचुरी इज नथिंग बट बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. एंड ऑफ औरंगजेब इज नथिंग बट बिगिनिंग ऑफ जो है 1707 का जो इवेंट है उसके मरने का वहां से माना जाता है. 17th सेंचुरी मान लो, एंड ऑफ 17th सेंचुरी इज नथिंग बट एंड ऑफ औरंगजेब इज नथिंग बट बिगिनिंग ऑफ मुगल 18th century, beginning of modern Indian history. Yes. In modern Indian history, what UPSC says, middle of 18th century. जो आप ब्रिटिश का एक आप सीक्वेंस देख लेना, जो 1757, 1857, 1947, ये जो 200 years का जो है, ये 77 जो है, जो 57 जो मिडल ऑफ एनी सेंचुरी ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा सा हानिकारक रहा. उनके इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बड़ी वॉर हुई. 1757 बैटल ऑफ प्लासी. ये जो मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के हम ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस कह लो, यूरोपियंस का पावर भी था एंड दे हैड पावर एंड क्लैशेस. तो एवरीथिंग आपस में क्लैशेस हो रहे थे. हाँ, यूरोपियंस के बीच में भी, इंडियंस के बीच में भी. ये एक सिग्निफिकेंट है जो आपकी हिस्ट्री में डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, जिसमें आपके सिग्निफिकेंट इवेंट्स आ जाते हैं जो कि काइंड ऑफ बैटल्स एंड अदर थिंग्स. बैटल्स हैं, वॉर्स हैं, जी आपके वेरियस लॉज एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, आपके मूवमेंट्स हुए थे, रेवोल्यूशंस हैं. ये सारी चीजें आ जाती हैं. इवेंट्स आप मान लो कुछ अच्छी चीज या बुरी चीज होती है सोसाइटी में.
गांधी जी आए थे, उनका गांधी एरा हुआ था, वो एरा जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट आपका वाटरशेड, आपका एक वो आपका लैंडमार्क एरा है, जब गांधी वाज हियर इन इंडिया 1915 में आए थे। तो ये वो जो एरा है, विल डिस्कस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। यहाँ पे क्योंकि प्रिसाइज डिस्कशन हो रहा है मेंस का, वहाँ पे यहाँ पे एक तो हो गया सिग्निफिकेंट इवेंट्स, और दूसरा हो गया पर्सनालिटीज के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज। सी यहाँ पे हर एक पर्सनालिटी पे एक डिटेल डिस्कशन है। मान लो दादा भाई नौरोजी, तो उनकी एक बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाती है। क्या अपना इसमें योगदान दिया है, क्या उसमें गांधी, नेहरू, तिलक, नौरोजी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, हर एक पे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, आपको ये भी देखना चाहिए कि इनके मेनली कॉन्ट्रीब्यूशंस ही देखने हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन किए इन्होंने। अगर आपने इनका बैकग्राउंड पढ़ा, इनकी जो कैपेबिलिटी पढ़ी, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े, तो दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू आंसर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जो कम से कम हर एक पे आपको एक डिटेल जानकारी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी की ऑटोग्राफी मतलब ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ने लग जाओ, या किसी एक पे मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के पूरे नेहरू पे मास्टरी करो। बेसिक आइडिया लेना है, बस बेसिक आइडिया लेना है, कंट्रीब्यूशंस किए, क्या इनकी आइडियोलॉजीज, क्या इनकी थिंकिंग थी, छोटा मोटा आपको जान लेना है। तो और इसके साथ साथ इसके इश्यूज, जो यूपीएससी ने क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स। जी हाँ, इसके सिग्निफिकेंस क्या है इवेंट्स के। बक्सर के सिग्निफिकेंस क्या थे, प्लासी के, वांडी वाश के क्या थे, ये सारे सिग्निफिकेंस पूछे हैं कि इसके कॉजेस क्या थे, मतलब इसके रीजंस क्या हुए, इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या वेरियस पॉलिसीज बनी, क्या स्ट्रक्चर बनाया गया, उसके बाद कैसा चेंजेस आए, उसके बाद जो कुछ वॉर्स यहाँ पे यूरोपियंस के बीच भी हुए, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में, कर्नाटिक, हाँ, जो कि हमें पता भी नहीं था, उनके बीच में हो रहे थे, वो ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में हो रहा था ये वॉर। और इसमें कई सारे आपके जो इंडियंस थे वो भी शामिल हो रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, कर्नाटिक। और बैटल ऑफ मैसूर हुआ तो वहाँ पे इंडियंस थे, हाँ, टिप्पू सुल्तान, उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स आ गए, वेदर इट इज निजाम हो गए, टिप्पू सुल्तान हो गए, मराठास हो गए। तो ये सारे इवेंट्स ऐसे हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क रखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। वी हैव सो मेनी रेगुलेटिंग एक्ट्स, बहुत सारे पिट्स इंडिया एक्ट हो गए, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784, फिर आपके और सारे एक्ट हो गए, चार्टर एक्ट हो गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1935, यस, फिर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ये सारे एक्ट्स, अब जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पढ़ेंगे ये सारे, बिल्कुल, ये पूरा बैकग्राउंड देते हैं। ये सारे एक्ट्स ही हैं जो कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली 1935 वाला। इन एक्ट्स में ये देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया, कैसे उन्होंने क्या क्या चेंज किए, बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कैसे किए, पुलिस रिफॉर्म कैसे किए, जो आईपीसी है जी, जैसे आईपीसी आपकी बनी, सीआरपीसी बनी, एविडेंस आपका बना, बिल्कुल, आपका ये सब एक्ट्स बने। तो ये वेरियस एक्ट्स बनाए, कैसे मतलब ब्रिटिशर्स आपके कैसे करते, किसी भी एक मॉडर्न एंड डेवलप कंट्री के लिए, किसी कल्चर्ड कंट्री में घुस के उस कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लैंडमार्क डिसीजंस दे हैव टेकन फॉर अस, एंड वो उन पे आज भी हम आईपीसी को फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज पूरा रिफॉर्म किया गया। अरे कुछ नहीं, आप ये भी तो देख लो, हमारा जो सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम है, दैट इज 1996 में आया, हाँ, कंप्लीटली ये जो सिविल सर्विसेज है, इट इज ब्रिटिशर्स बेबी सिविल सर्विसेज, जो यूपीएससी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ब्रिटिश ने कैसे रूल किया, उसी की देन है। जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि कैसे हमारे लिए बनना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कैसे राइट्स दिए जाएंगे, कैसे ड्यूटीज होंगी, कैसे प्रिंसिपल्स होंगे। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द ब्रिटिशर्स फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी थी, वी डिस्कस ऑन इंडियन, उसमें करेंगे कि इन्होंने कैसे लॉज और कैसे एक्ट्स बनाए, बिल्कुल, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे इसके बाद हमारे आते हैं इश्यूज में हम देखते हैं बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी हैं जिसमें वेरियस मूवमेंट्स हुए, क्या क्या उसमें आपके रिफॉर्म्स कैसे लिए गए, बिल्कुल। तो जैसे अभी आप कुछ देर पहले मुझसे कह रही थी कि सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो उन्होंने कैसे आपके कैसे मूवमेंट शुरू किए। See, the personalities who are enter into राजा राम मोहन राय हो गए, एनी बेसेंट हो गए, एंड सर सैयद अहमद खान, तो इन ये सब रिफॉर्म्स आए, इनके रेनेसांस आप मान लो, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। अब व्हेन राजा राम मोहन राय वाज देयर, तो एक अंधविश्वास बहुत ज्यादा था,
लगी थी। जब राजा राम मोहन राय हिंदुस्तान से बाहर जाने वाले थे तो उनकी मदर ने कहा कि आप समंदर पार नहीं कर सकते, उससे आपका जो ये है मजहब है, रिलीजियस है, वो आप पे ऑब्स्ट्रक्ट होंगे। उसका लॉजिक रीजन अलग है कि बच्चा कहीं फैमिली से दूर चला जाए बहुत ज्यादा, तो हालांकि हमारे इस्लाम में भी इस तरह सा है कि औरत कुछ 40 किलोमीटर से ज्यादा कहीं ज्यादा अकेले नहीं जा सकती। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि अब फिलहाल वो हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि जाना आना भी आज की डेट में 2 घंटे में इंडिया से बाहर चले जा सकते हैं वो आराम से। हाँ, तो उस टाइम पे वो अंधविश्वास को फॉर द फर्स्ट टाइम राजा राम मोहन राय टुक इट इन हिज हैंड। विडो रिमैरिज हुई, सती सिस्टम को रिमूव किया विलियम बेंटिक के थ्रू, लेकिन राजा राम मोहन राय का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, ही इज अ बिग रिफॉर्मर एट दैट टाइम। जी, 1829 में एक्ट आया तो वो उन्हीं की वजह से आया। हाँ, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज इतनी इम्पोर्टेंट है इशाद, विवेकानंदा है और सर सैयद अहमद खान, एजुकेशनलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, मतलब पूरी कम्युनिटी को उन्होंने लेके एक स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, जो कि आगे चल के यूनिवर्सिटी बनाया, और हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। हाँ, तो ये सारी चीजें वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। और इन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे रिसर्चेस हुए, बहुत सारा रेवोल्यूशन आया, वहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई गई हमारे रिफॉर्म किए गए। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट है, उसमें काफी सारे एजुकेशनल रिफॉर्म किए गए, प्राइमरी एजुकेशन डाली गई, वुमेन एजुकेशन की बात कही गई। तो अगर हम यहाँ देखें मैम, तो इसमें जैसे आपने बात कही सिग्निफिकेंट इवेंट की, तो उसको आपने 3 सेक्शन में डिवाइड करा कि पहले बैटल हैं, पावर्स हैं, फिर आपके पॉलिसीज हैं, एक्ट हैं, लॉज हैं, फिर आपके वेरियस मूवमेंट्स हैं। जैसे ट्राइबल आपके पीजेंट हो गए, ट्राइबल आपके हो गई मूवमेंट्स हो गए, जैसे कि भेल है और ये चोर है, भेल हो गई, चोर हो गई, अहोम हो गई। तो आप जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स को आप रीजन के हिसाब से देखो। जैसे बहुत से उसमें फेमस एक मूवमेंट है मुंडा रिबेलियन, सिंथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन। आप ऐसे देखो, अहोम एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट, जो कि हमारा असम हो गया, बांग्लादेश हो गया, अपर नॉर्दर्न पार्ट, और भेल जो हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी। जो भेल है वो है एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान का जो रीजन है, और मुंडा वगैरह जो सिंथाल है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट, उड़ीसा झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का वो रीजन है जो, और सदन में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, छोटे-छोटे हुए। जैसे उसमें 2 इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रहे हैं, म्यूटिनी आपकी हुई थी, एक वेल्लोर म्यूटिनी और एक पाइका रिबेलियन आपका उड़ीसा में हुआ था। ये तो भी काफी आपके वाटरशेड आपके मूवमेंट हैं, काफी इंपॉर्टेंस ये भी रखते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, और ये ट्राइबल मूवमेंट, हाँ, लोकल ट्राइबल मूवमेंट्स हैं। सी अल्टीमेटली मूवी बनी थी मैम RRR, उसमें भी एक दिखाया गया था अल्लूरी सीताराम के बारे में। जी, तो वो भी काफी बड़ा मूवमेंट था 1921 में। जी। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज समझने की बात जरूरी है कि हर किसी पेशेंट का अलग रीजन हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। जब हम रवार्स की बात आए तो सिराजुद्दौला का रीजन अलग था, झांसी की रानी का रीजन अलग था, और लक्ष्मीबाई का रीजन, और इंतांदिया तोपे का रीजन अलग था, औरंगजेब का रीजन अलग था। तो 2 रीजन्स वर डिफरेंट, बट इवन टिप्पू सुल्तान का रीजन अलग था, और जफर का रीजन अलग था। बट बॉटम लाइन इज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश हु वर रूलिंग, हु कॉलोनाइज्ड अस, दो वी हैड like so many developments according to Britishers, but we don't consider as a development. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे डेवलपमेंट्स में, दादा भाई नौरोजी's ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, हाँ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी में आपको सीधे ड्रेन ऑफ बताया कि कैसे ड्रेन हो रहा है वेल्थ का हमारे, कैसे ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा है, कैसे उनको ट्रेड वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस पैसे का कोई यूज नहीं हो रहा है, वो सब लेके के जा रहे हैं बाहर, अपने इंग्लैंड में जाके उसे यूज कर रहे हैं। वहाँ पे अमेरिका के साथ 17th सेंचुरी में वार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी जैसे लोगों ने सुना होगा, फेमस है। यहाँ पे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में विल गो ऑन ईच एवरी पॉइंट। पार्ट है, यस, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे अभी आपने सिग्निफिकेंट इवेंट बताई, वैसे ही पर्सनालिटीज को भी हम लोग छोटे से पार्ट में बता सकते हैं। जैसे कि आपकी पर्सनालिटीज को हम लोग कुछ सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1857 की पर्सनालिटीज कौन कौन सी हुई उसमें, जैसे आपके मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई मैम ने आपको नाम बताए। फिर आपके उसके बाद आपके जो
आपके मूवमेंट हुए, जैसे राजा राम मोहन राय ने आपके चेंजेस के रिफॉर्म किए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, इन लोगों ने जो रिफॉर्म किए आपके समाज में। फिर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए, उसमें नेहरू हो गए, एनी बेसेंट हो गए, सरोजनी आपकी नायडू हो गए, एमएन रॉय हो गए, आपके इस टाइप के लोग रहे। फिर आपके और उसमें आपके मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाले आपके जो मूवमेंट थे वो आपके शुरू हुए। तो उसमें कुछ पर्सनालिटीज हुई, जैसे लाल बाल पाल, कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को पता है लाल बाल पाल ये 3 लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय घोष थे। जी हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 आपके फेमस पर्सनालिटीज थी। अरविंदो घोष थे। और ये जो किताबें पढ़ते हैं बिपिन चंद्र वो अलग है और बिपिन चंद्र पाल वो अलग है, हाँ, बात याद रखना, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हमारे बच्चों को पता होंगी, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, जो आपके फोर्सफुल होकर के आपके फाइट आपके ब्रिटिशर्स से ले रहे थे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आपके सूरसेन, आपके ये सारे नाम देखे जाते हैं उसमें। तो ये सारे भी मूवमेंट आपके पर्सनालिटीज वहां पर हैं। फिर इसमें तो उसके बाद में बिफोर वर्ल्ड वॉर्स, बिफोर इंडिपेंडेंस, गांधी एंटर्स, गांधी एरा शुरू हो जाता है। गांधी एरा स्टार्ट द इंडिगो मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, तो और अहमदाबाद स्ट्राइक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे गांधी एरा में आप एक बात को आपको समझना है, जो चंपारण और इंडिगो मूवमेंट था, दैट इज अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट व्हेन इट वाज मिल स्ट्राइक मूवमेंट that is against Indians, against the mill owners of जो कि आपके इंडियंस थे। तो वहाँ पे if you read गांधी in detail, तो आप एक चीज समझोगे कि how गांधी was taking his decisions if with चौरी चौरा की बात आप कर रही थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एंड हुआ था, चौरी चौरा मूवमेंट आइडियोलॉजी थी वो अहिंसा वाली थी, अहिंसा वाली थी। Though चौरी चौरा movement was a very small incident, but Gandhi took it on his heart very seriously. जो आइडियोलॉजी थी वो थी कि अहिंसा उनको नहीं, जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया विद अदर लीडर्स। जी, वो हिंसा के अगेंस्ट थे, वायलेंस के अगेंस्ट थे। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया गया। उसमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस काफी इंपॉर्टेंट आते हैं, जिसके बाद से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ही कमान संभालते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की। हाँ, then that was the moment where Bose actually took his path। जी, उन्होंने डिफरेंट पाथ पूरा अपना लिया। नेहरू ने भी डिफरेंट पाथ को यूज किया। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी CR दास, जिन्होंने आपके बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा कि मैं वहां मिल के जाऊंगा, उनके थ्रू लॉज पॉलिसीज बनाऊंगा, ऐसे अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाऊंगा। CR दास हो गए, मोतीलाल आपके हो गए, नेहरू हो गए, तो ये सारे। यहाँ से एक जो होता है आपका सुभाष चंद्र बोस का एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। देन ही स्टार्ट मीटिंग इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल आर्मी बनाई, ही वेंट टू रशिया, द पाथवे ही हैज टेकन। ये एक लंबा आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक पे मिल जाएगा। डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग, ये आपको सिलेबस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ये सब पर्सनालिटीज आ जाती हैं, कहने का मतलब है कि ये सब, और हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड पे व्हाट ऑल वी सेड, ये एक ही वर्ड था, एक लाइन थी एक्चुअली, जिसको हमने डिस्क्राइब किया। द लाइन इज, हमने डिस्क्राइब किया अपने पार्ट से पूरा आपको वो किया है। अपनी तरफ से ये एक लाइन थी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। इसमें एक और छोटा सा पार्ट है प्रेजेंट। जी, इसमें एक और छोटा सा पार्ट होता है जिसमें इश्यूज आते हैं। इश्यूज हम क्या दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे वाइस रायज बनाए ब्रिटिशर्स ने, उनकी क्या पॉलिसीज रही, छोटे मोटे इश्यूज आपको वहां पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपके वेरियस जो रिफॉर्म्स किए गए, उसमें रिफॉर्म्स में बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म किए, और आपके पुलिस रिफॉर्म किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, आपके सोशल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया, कैसे उन्होंने रिफॉर्म्स किए, ये सारे आपको इश्यूज पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस को लेके एक चीज आपको समझना है, यूपीएससी ने मेंशन किया टिल प्रेजेंट में आपका आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, टिल प्रेजेंट में मेन आपका आ जाता है इंडिपेंडेंस लेना। एक तो इंडिपेंडेंस लेना, और ऊपर से आपका आ जाता है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप कह रही हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अगर मैम देखिए तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि रीजनल पार्टीज कैसे बनाई गई, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ, ये सारा पढ़ना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये आता है कि हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ भी हमारा वॉर्स हुए, चाइना के साथ हुआ, और 61 में पाकिस्तान के साथ हुआ, बांग्लादेश जिसमें बांग्लादेश लिबरेट हुआ, इंदिरा गांधी एरा, इमरजेंसी का पीरियड, इमरजेंसी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक पे स्पेशल कंसंट्रेशन देने की
जरूरत है, क्योंकि टिल इंडिपेंडेंस तो ये भी हो सकता है कि टिल इंडिपेंडेंस करंट होके यहाँ तक भी आ सकता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो ये एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंड यस्टरडे इज योर हिस्ट्री। यू शुड बी वेल अवेयर वेयर यू शुड स्टार्ट एंड वेयर यू शुड स्टॉप। 20 साल पहले भी क्या रिवॉल्यूशन हुई, क्या चेंजेस हुए, वो भी आपके हिस्ट्री का हो सकता है कि 2014 में कौन गवर्नमेंट आई, उनके रिफॉर्म्स क्या थे, क्या रहे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीए एंड एनडीए इन इंडियन हिस्ट्री। अलग अलग सिलेबस में अलग अलग पिलर्स में डाल के रखा है, वो हम आपको अलग अलग बताएंगे। यहाँ पे आपको मेनली हिस्ट्री का ही पार्ट समझना है, जो कि आपके सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज और आपके इश्यूज में हमने आपको बताया है। जब इंदिरा गांधी का ले लेंगे तो यू हैव ब्लू स्टार, यस, ब्लू स्टार, वो सारी चीजें छोटे मोटे उसमें कई सारे इवेंट्स आते हैं जो आपको आगे आपको बताया, कवर किया जाए। एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हर चीज अभी सिलेबस में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है, तो हर चीज यहाँ पे हम आपको बता नहीं सकते। सिलेबस ही बताना अपने में ही बहुत बड़ी बात है, तो हमने एक छोटा सा किया है, उसमें हमारा ये छोटा सा एक प्रयास या किसे क्या कह सकते हैं, we are trying our best to make you understand what exactly UPSC mean to, हो सकता है, कहाँ तक आपको पढ़ना हो सकता है। जी मैम, एग्जैक्टली। Till now what we discuss GS1 मेंस का जो GS का पेपर्स हैं, 4 पेपर हैं, उसमें से जो पेपर 1 है GS का, उसका जो सिलेबस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया इंडियन कल्चर, इन डिटेल वी डिस्कस्ड इट, एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द टू इन 18th सेंचुरी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था हमारा, नेशनल मूवमेंट, वो पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया उसको। और जो नेक्स्ट टॉपिक था वो फ्रीडम स्ट्रगल था, दैट आल्सो वी डिस्कस इन डिटेल, एंड अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस आल्सो वी डिस्कस इन डिटेल। कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो वो भी हमने। तो नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री हमने डिस्कस किया, और हमने पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, 2 एंड आल्सो कोल्ड वॉर, और उसके बाद भी जितने कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कैपिटलिज्म, yes we discuss all, and now the sixth topic according to UPSC in paper 1 GS paper 1 का जो 6th topic है वो है salient features of Indian society and diversity of India। तो यहाँ पे salient features of Indian society, ये जो वर्ड है ना, कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करता है ना UPSC, सोसाइटी itself a big term, और उसमें भी वो क्या कह रहा है, salient features, आपको कुछ important features ही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना उसमें भी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सी, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, हम ये भी बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यस यस, बिल्कुल। तो सोसाइटी अगर यहाँ देखें तो ये क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग रहते हैं किसी समाज में, किसी एरिया में, तो बिल्कुल इसे कहते हैं, एक इससे सिंपल टर्म में कह सकते हैं, और ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जो सोसाइटी यू मीन टू से ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट कुड बी ट्राइबल ग्रुप, इट कुड बी एथनिक ग्रुप, हो सकते हैं, जैसे कि एक छोटा गांव अलग है, वो उसकी एक सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ बड़े हैं, छोटे हैं, उनकी अपनी वैल्यू होती है, उनकी अपनी वैल्यू है, फेथ होती है, रिलीजन होता है। हाँ, एक सोसाइटी का एक कल्चरल सिस्टम होता है, इवन दे हैव कल्चरल प्रोग्राम्स, अपनी सोसाइटी को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। कह रहे थे कि उनके फोक डांसेस और फोक सॉन्ग होते हैं। यस यस, वी डिस्कस दिस इन कल्चर, इंडियन कल्चर में डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो ये सब लिंक्ड होता है सोसाइटी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सोसाइटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर। इसीलिए यहाँ मैंने कहा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हो गया आपका सोसाइटी, और ग्रुप ऑफ पीपल मींस आई सेड ट्राइबल। हाँ, ट्राइबल ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में। जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल देंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे ट्राइब हैं, हर हिल पे एक ट्राइब होती है, और हर ट्राइब की अपनी एथनिक वैल्यूज हैं, अपना बिलीफ सिस्टम है, अपना उनका एक सिस्टम है। जैसे आप और एग्जांपल लें तो आप साउथ इंडिया में जाएं, आप मिडिल इंडिया में जाएं, महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, वहाँ बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। बिल्कुल। तो उनकी अपनी अपनी हो सकती हैं कई सारी वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, अपना उनका एक ट्रेडिशन हो सकता है। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो सोसाइटी का पार्ट है, इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। तो कुछ नॉर्मल फीचर होते हैं जिन्हें हम एक सिंपल टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि हायरार्की क्या है या फैमिली ओरिएंटेशन क्या है। अब जैसे कि आप मैम कह रही थी, कल ही कह रही थी कि फैमिली आजकल ज्वाइंट फैमिली का जो टाइम पीरियड है वो न्यूक्लियर आ गया है, टाइम पीरियड आ गया है, लोग ज्वाइंट फैमिली में उतना नहीं रहते,
अकेले अकेले रहना पसंद उनको रहता है, तो न्यूक्लियर फैमिली को उनकी अप्रोच हो चुकी है, तो ये भी एक पार्ट है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी हायरार्की सिस्टम आप जो सोसाइटी में जो आती है, विच इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू से फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल, आप उसको हायरार्की में इसको ले चलो आप, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ये इसका मीनिंग है। हाँ, वाइट टर्म है। इसमें क्लास भी हो सकती है, कास्ट भी हो सकती है, बिल्कुल, इसमें और भी बाकी चीजें हो सकती हैं, तो इसमें मतलब हायरार्की एक वाइड आपका है टर्म, आपको ये पूरा एक अच्छे से पढ़ना होता है इसमें कि किसी भी सोशल जो ग्रुप होता है उसका कहाँ उसका क्या उसका ओरिजिन होता है, उसका क्या उसकी एंड वैल्यूज होती हैं, तो ये पूरा एक सीरीज बाय सीरीज स्टेप बाय स्टेप ये होता है इसमें। फिर इसमें एक पॉइंट आता है कि सैलिएंट फीचर, जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा भी है, सैलिएंट फीचर क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिया स्पेसिफिक पढ़ने होते हैं, आपको वर्ल्ड के नहीं पढ़ने। और हम जानते हैं कि इंडिया में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है मल्टीपल यहाँ पे चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं और डिफाइन करूँ उसको तो मल्टीपल एथनिसिटी है, मल्टी एथनिसिटी इंडिया में। बिकॉज यहाँ पे आई लाइक टू ऐड समथिंग व्हेन इट कम्स टू एथनिसिटी कुछ जगह पे जैसे कि इंडोनेशिया है, मंगोलिया है, वहाँ पे एथनिसिटी इज द सेम, बट इंडिया में मल्टी एथनिसिटी है क्योंकि वी हैव आर्यन इन्वेजन, वी हैव मिडिल ईस्ट इन्वेजन, फॉर मल्टीपल रीजंस इन मल्टीपल फेजेस विद मल्टीपल रीजंस मेनी ethnic races came to India, they settled here। जैसे कि हम अभी इंडिया में देखते हैं एक जो एथनिसिटी है that features comes with race itself। तो northern part of India will be fair, उनके जो फीचर्स हैं वो अच्छे लगते हैं, और southern part डार्क होता है because Dravidian ethnicity, और साउथ में भी फेसेस होते हैं। नॉर्थ में देखिए आप थोड़ा सा उनकी चिन थोड़ा सा ऐसी होती है, आपके वी शेप में होती है चिन, और कश्मीर का रीजन है उसमें शार्प फीचर्स होते हैं। इसी तरह अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके देखें तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मंगोलिक फीचर मिलेंगे, आंखें छोटी होंगी, हाइट थोड़ी छोटी होगी, बाल उनके एकदम पॉइंटेड, दैट इज मंगोलियन रेस है, एथनिसिटी उनकी मंगोलियन है। नॉर्थ की तो आर्यन है और साउथ की द्रविडियन है, मिक्स ऑफ बहमनी डायनेस्टी वाज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो इस तरह की अरेबिक फीचर्स हैं। हमारा जो गोवा एंड कुछ पॉकेट्स हैं जैसे पोर्चुगीज वगैरह, तो वहाँ पे आपकी फ्रेंच और डच की जो एथनिसिटी है वो आपकी मिलती है, अफगानी फीचर भी थोड़ा यहाँ मिल जाते हैं। बिल्कुल, तो दैट इज व्हाई एथनिसिटी है, मल्टीपल यहाँ पे रिलीजन है, इसलिए मल्टी, तो यहाँ पे इसलिए यूपीएससी व्हाट इट सेज मल्टीपल एथनिसिटी, मल्टीपल कल्चर, रिलीजन, तो यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन का भी एक बहुत बड़ा अकोमोडेट करता है इंडिया, जो कि इंडिया में बिकॉज इट इज द कॉन्टिनेंट, पेनिनसुला एक सब पार्ट है, सब पार्ट है, क्योंकि एक जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है ना विशाल इंडिया का, कि यहाँ पे कोई भी जो इंडिया से बाहर है उनको पूरे एक साल का टाइम पीरियड नहीं मिलेगा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली इन इंडियन पेनिनसुला व्हाट वी हैव इज हार्बर्स आर ओपन फॉर एंटायर ईयर, बिकॉज दैट टाइम इन इवन ट्रेडिशनल इवन नाउ जो मेन रूट होता था वो सी रूट होता था, आफ्टर मोस्टली सी रूट से आते थे, जो बहुत दूसरे यूरोपियन एंड अमेरिकन आते थे, तो व्हाट दे हैड इज ऑल हार्बर्स आर ओपन फॉर एंटायर ईयर, तो उनके लिए यहाँ पे आके बसना, यहाँ पे आके अपनी एथनिसिटी, अपना रिलीजन या प्रीचिंग वॉट एवर इट इज फैलाने के लिए उनको यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब अकोमोडेशन मिल जाता है पूरे साल के लिए, विच यूजुअली नेवर डू। फॉर एग्जांपल इन चाइना दे हैव ओनली वन एथनिसिटी एंड हार्डली दे हैव वन और टू रिलीजन, इतने मल्टी रिलीजन नहीं है। इसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया ने सबको ओपन हैंड से किया, वेलकम किया। इंडिया के लोगों ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप यहाँ नहीं आ सकते, अकोमोडेट किया उनको। जैसे अगर आप अभी एग्जाम्पल देखें तो जो आपके पारसी हैं जो पर्शिया से आए थे, आज का जो ईरान है, तो उन्होंने यहाँ पे इंडियन ने उनको अच्छे से अपनाया, वेलकम किया। बिल्कुल। तो इसलिए भी यहाँ मल्टीपल लोग रहते हैं, मल्टीपल यहाँ पे एथनिसिटी देखने को मिलती है। इसमें फिर जो नेक्स्ट चीजें थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ती हैं वो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक आपको मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट, चूजिंग टू बी अ मॉडर्न एंड चेंजिंग योरसेल्फ, बिकॉज जो आपकी सोसाइटी होती है वो क्या है, वो एक आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन लगातार उसमें होता आ रहा है। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि एंशिएंट टाइम से लोग आते रहे, तो यहाँ पे जो लोग थे उनका माइंड सेट भी ऐसा ही है, उनकी अप्रोच भी ऐसी कि वो सबको अपना, तो वो लगातार एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ का जो समाज है वो क्लोज नहीं है,
ओपन है, आइडियाज अपनाता है वेरियस। आपने जैसे देखा होगा कि 20-30 साल पहले things are good for them, they are ready to change. Here people are ready to change, especially Indian, the traditional Indian people, the Indian race, Indian ethnicity, what do we say, they are ready to adopt. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी देने वाला था कि 20-30 साल पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रिसमस डे जैसा कुछ नहीं होता था सेलिब्रेशन, लेकिन अब वो होता है क्योंकि इंडिया का ओपन माइंडसेट है। वो आज क्रिसमस डे को एज अ होली की तरह ही फेस्टिवल यहाँ पे होता है वो भी। तो इसलिए यहाँ पे एक ये अप्रोच है कि मॉडर्नाइजेशन है, कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होता आ रहा है। जैसे कि आप देखें कि द्रविडियन में या आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाके तो पहले वहाँ पे धोती कुर्ता पहनते थे, और आप द्रविडियन पार्ट में देखें या साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पे लुंगी पहनते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लुंगी पहनते थे। लेकिन अब क्या है, वहाँ पे जीन्स पैंट पहन रहे हैं, वहाँ शर्ट पहन रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की अप्रोच है, ट्रांसफॉर्मेशन होता आ रहा है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। यू कैन से हियर द डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब जो वर्ड्स हैं, इट गिव्स द मीनिंग टू इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन वैल्यूज, ये सब चीजें हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि वी आर लिविंग टुगेदर सेपरेटली। तो ये एक बहुत अच्छा टर्म है, लिविंग टुगेदर सेपरेटली। हाँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हम लोग दूसरे के भी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनका भी हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोग रखते हैं। हम ये नहीं बोलते कि उसकी रिलीजियस वैल्यू नीची है, छोटी है या ऊपर है, या हमारी उनसे ऊपर है। तो इसे एक टर्म में हम क्या कह सकते हैं, सेक्युलरिज्म। यहाँ पे सेक्युलरिज्म का भी पार्ट आता है, वो भी एक यहाँ पार्ट है। तो अब यहाँ पे इंडिया में ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निटी व्हाट यूपीएससी में ये डिफाइन करता है। जी। ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निटी, इसे अगर हम देखें तो इससे बच्चे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ इंडिविजुअलिस्टिक सेंट्रिक अप्रोच हो चुकी है आज के टाइम में। सेक्युलरिज्म यहाँ पे है, जो लिंग्विस्टिक है, मल्टीकल्चरलिज्म है, इस सबको यहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, जो इंडिविजुअलिज्म हियर यूपीएससी टॉकिंग अबाउट योर इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी की जो इंडिविजुअलिटी, जो आपका जो स्टेट है वो क्या पॉलिसीज बना रहा है वेरियस सेक्शंस को लेकर के। तो सेक्शंस क्या है, समाज का एक पार्ट ही तो है, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, ट्राइब्स हो गई, बच्चे हो गए। एनी पर्सन, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ सोसाइटी, बट नॉट हियर, नॉट अ नेशन, नॉट अ स्टेट हियर। जो इंडिविजुअलिज्म है, इसमें जो आपका मटेरियलिज्म है, जैसे कि तो इसमें मटेरियलिज्म जो है, जी मैम, मटेरियलिज्म की जो अप्रोच है ये इंडिविजुअल सेंट्रिक इसलिए कही जाती है क्योंकि अगर आप देखें तो पहले इंडिया एक स्पिरिचुअल नेशन था। यहाँ पे योग था, यहाँ पे आपकी प्राणायाम की फिलॉसफी थी, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होना शुरू होता है, तो यहाँ के लोगों ने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को भी अपना लिया, इंडिविजुअल सेंट्रिक हो चुके हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम India society is facing because of individualistic approach and because of consumerism। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी ने कि इंडिया की सोसाइटी पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं इंडिविजुअल जो सेंट्रिक अप्रोच है उसकी वजह से, या कंज्यूमरिज्म जो है आपका शुरू हो चुका है आज के टाइम में, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है आज का इंडियन बिल्कुल। तो यहाँ पे मटेरियलिज्म इज कंप्लीटली इंडिविजुअल को लेके, मतलब सिंगल पर्सन को लेके कि इनकी सोच कैसी डेवलप हो चुकी है। तो ये जो सोच डेवलप होने का, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी, बीइंग अ सिंगल, बीइंग अ इंडिपेंडेंट, यू से। तो इंडिपेंडेंस का जो एक्चुअली जो वर्ड एमर्ज होता है वो है कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म ये इसका बेस्ड है। हमें रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कैपिटलिज्म, हाउ इट emerged and as a philosophy, how it impacted the society, and this is the impact and this is the result, being materialism and bringing your secularism, ये सारी चीजें, these are the babies of कैपिटलिज्म। अगर मैम इसको हम और अच्छे से समझें तो हम देखते हैं हमारे इंडिया में अभी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, हमारा इंडिया ओपन हो चुका है, ट्रेड ओपन हो चुका है, यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पहले क्लोज थी, आज के टाइम में वो ओपन हो चुकी है, बॉर्डर सारे ओपन है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी जो आपका इंडिविजुअलिस्टिक सेंट्रिक अप्रोच है उस पे भी काफी ज्यादा आपके एक वो पड़ा है, काफी ज्यादा उस पे एक आप कह सकते हैं कि वो भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है।
यस एग्जैक्टली। तो ग्लोबलाइजेशन भी एक चीज है जिसको यहाँ समझना पड़ता है, और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ऐसा इन 90s द एलपीजी रिफॉर्म्स। हाँ, तो विल डिस्कस दैट इन डिटेल। एलपीजी क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है इकोनॉमिक्स का आपका, तो वो उसका एलपीजी का इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पे। मैं बता रहा था कि इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है इंडिया के समाज पे, इंडिया के क्लास सिस्टम पे। एंड इट कुड बी, ये क्वेश्चंस मेंस पे भी आ सकते हैं, एंड इट कुड बी द सोसाइटी एक ऐसा पार्ट है जो आपके एसए में बहुत आपके यूजफुल होने वाला है जी, काफी इम्पैक्टफुल ये एक आपका वो है पार्ट है आपके सिलेबस का, आपको इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। और इसमें एक चीज और आप समझ सकते हैं लास्ट में, अगर मैं आपको बताऊं तो फैक्टर्स क्या हैं जिनसे इफेक्ट हो रहा है आपका इंडियन समाज। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे पैट्रियार्चिकल सिस्टम है, तो आपको पैट्रियार्ची आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर अगर आप देखें जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, ये भी एक पार्ट इसमें आ जाता है, इससे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, काफी चेंज हो रहा है। व्हाट आई से इज कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये चीजें अलग अलग आप पढ़ के नहीं समझ सकते। इसमें ये होलिस्टिक अप्रोच है। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन सोसाइटी, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फैमिली, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन हायरार्की, व्हाटएवर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, वेदर इट इज अ मेंस और जीएस और एसए, तो इन सब चीजों में आपको एक आंसर राइटिंग में आपको होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। इन सब चीजों को जब आप एक चीज पढ़ रहे हो तो सारी चीजों को लेके चलो, क्योंकि ये चीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको हर एक सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, होलिस्टिक अप्रोच नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप अगर ये वाला पार्ट देखें, जो ये वाला आपका सिलेबस अभी हम लोग बता रहे हैं, ये पेपर 2 में भी बराबर आता है। कैसे? आपकी जो सरकार है और पेपर 3 में भी पूछता है। हाँ, यहाँ पे ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट कैसे सेक्शन को डिवाइड करते हैं। हाँ, तो वी हैव अपर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने से डिसाइड करती है कि हु आर द नीडेड। We have given reservation for SC/ST vulnerable sections. तो ये जो ट्राइब्स को अलग से डिफाइन करती है गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट चारों तरफ से लाके एक मतलब प्लेटफॉर्म देती है, एक अप्रोच देती है। व्हाटएवर प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, व्हाटएवर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स, तो दे विल गिव होलिस्टिक इंपॉर्टेंस टू एवरीथिंग। ये जो आप बात कह रही हैं मैम, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जो बच्चों ने पढ़ाई होगा या बच्चे पढ़ते हैं इसको, अमेंडमेंट जो हो रहे हैं, तो अभी हमारा लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो है 106 जो हमारा अभी हुआ है अमेंडमेंट। तो उसमें क्या है, उसमें एक नया आपका बनाया गया लॉ, उसमें क्या कहा गया, उसमें 33% आरक्षण की बात कही गई है, जो आपकी वुमेन के लिए उनको लोकसभा में, लेजिस्लेटिव आपकी जो असेंबलीज है वहां पे। तो ये रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबल सेक्शन है, अभी तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। तो इसलिए ये सब यहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शन आता है, पॉवर्टी लाइन भी जो आती है, और हर सेक्शन में, वेदर इट इज अ कल्चर, वेदर इट इज अ सोसाइटी, यहाँ पे हर सेक्शन में वुमेन हैव अ मोर इम्पोर्टेंस, वुमेन को बहुत इम्पोर्टेंस। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्लियामेंट क्या करता है, रिजर्वेशन देता है नहीं देता है वो बात की बात है। पार्लियामेंट में जब बिल कोई पास हुई है, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये एक सेक्शन को इतने परसेंटेज देने का पर्पस क्या है। तो कहीं ना कहीं वो पीछे रहा होगा सेक्शन, इसको मिल रहा है रिजर्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी आपके इसी पार्ट में ही आता है, कवर होता है, थोड़ा इसमें आ जाता है। ये सोसाइटी को लेके आपका एक होलिस्टिक अप्रोच, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एथनिसिटी एंड कल्चर, बिकॉज टुमारो यू आर गोइंग टू बी विद द सोसाइटी। This is the biggest reason why UPSC want you to go through each and every part of your society. Exactly. As we were discussing GS paper 1 in mains according to UPSC, what UPSC provided the syllabus, we are already discussed so many topics. In those we discuss Indian culture, modern Indian history, freedom struggle, post-India consolidation, post-Indian history, and we have even saw the world history, world wars and revolutions, and so many revolutions, inventions, and also these are the 5 topics. These are the 5 topics, and we discussed salient features of Indian society. Yes, also, and we discussed now what UPSC says a role of women. This is topic number 7, I think. topic number 7 according to UPSC, role of women. यहाँ पे आप एक चीज समझो, role of women itself a big topic for UPSC. women, सभी पेपर्स में पूछा जाता है। पेपर 1 और 2 और 3 और 4 में पूछा जाता है, सबने पूछा जाता है। तो here role of women, and in that women organization. तो women organization, and also the next topic is population,
एसोसिएटेड इश्यूज। तो एक हो गया वुमेन, पॉपुलेशन, एंड द थर्ड टॉपिक इज पॉवर्टी एंड अर्बनाइजेशन। 4 इसमें टॉपिक्स हैं। ये वुमेन and women issues and poverty issues, urbanization issues, population issues। 4 बेसिक इसमें टॉपिक्स हैं। तो इसमें रोल ऑफ वुमेन जो हमारा पहला टॉपिक इसमें आता है, इसमें ऐसा है कि इसमें आपको ये देखना होता है कि वुमेन का पहले हम लोग को पढ़ना क्यों है। पहली बात तो ये आती है। तो आपको पता है कि एक लंबी हिस्ट्री रही है सप्रेशन की। women in a Vedic period, in Rigvedic period, in ancient period we can say, जो ancient history में what we study is women was the head of the family, women is the head of the village, head in society, and it was a hierarchy of women was a higher than men। when it comes to even आज भी हमारे घर में मम्मी की बात ही सब जगह चलती है, लेकिन head of the फैमिली पापा है, बट उनके भी हेड मम्मी है, उनकी भी मम्मी होती है। तो at that time it was impractical, even today it is a practical, though it is not visible today, but at that time it was visible and acceptable by the society। जो women had the higher power because economic condition was under her control, जो employment है it was in her control। तो ancient period में women had the highest authority, power, status, privilege, prestige in her life। The standard of living of women was higher in ancient society। Though जब society में changes आए after a certain period of time, when society में Vedic period, Rigvedic period, medieval period आया, हाँ, उसके बाद में जनपदास, जब हमारे महाजनपदास आते हैं, तो gradual decline होने लगा। हाँ, gradually decline हो गया। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि foreign invaders है, different culture, different ethnicity, status of women has declined to this level what today is facing women to come up, because देखो जहाँ पे population equal है, मतलब ultimately population कम या ज्यादा, I'm not going in numbers, but ultimately population equal है, women and men। तो यहाँ पे women को फिर suppress करते यहाँ तक के बचपन में शादियां होने लगी, child marriage होने लगी, and sati system we had, and these kind of the systems we had gradually होने लगी। और इसमें एक चीज और भी थी कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था वो काफी ज्यादा लो होने लगा। वुमेन का हर फील्ड में रिप्रेजेंटेशन काफी कम हो गया। They never had voting rights नहीं थे। Voting rights नहीं मिल रहे थे। फिर सोशल एविल्स बहुत सारे आ गए। We were talking voting rights women got during after Second World War। और even after First World War in certain countries women got voting right, and after Second World War के बाद women got voting right in multiple countries। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसमें बेसिकली ये बात क्लियर हुई कि अब वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए जाए। तो इसमें यही चीज था कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स शुरू हो चुके थे। मतलब वुमेन का जो आपका एक जो उनका रहन सहन का जो स्ट्रक्चर था वो काफी लो हो गया था, काफी नीचे हो गई थी उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन। तो इसलिए विमेन का रोल पढ़ना बहुत जरूरी है। और विमेन के रोल में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि विमेन का अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ, एम्पावरमेंट कैसे हुआ, ग्रेजुअल उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिला, बिकॉज़ ऑफ सो मेनी रिफॉर्मर्स आए, कई सारे एक्ट्स बने, कई सारे वुमेन्स थी, वो भी जो सोशल एविल्स थे वो देखो, women was suppressed after certain period because her status was higher। after certain period women got suppressed। तो वहाँ पे when women is in depression, तो हमारे यहाँ पे एक कहावत भी है कि अगर एक औरत को इल्म दिया जाए, इल्म मतलब तालीम याफ्ता बन जाए एक औरत, तो वो पूरे खानदान को इल्म सिखा देती है, पढ़ा देती है, क्योंकि खानदान मतलब क्या, उन बच्चों को। हाँ, तो इवन कन्नड़ में एक कहावत है कि बच्चा माँ की गोद से पढ़ने लग जाता है। बच्चे की पहली स्कूल है माँ की गोद में। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, वुमेन को सप्रेस कर दिया गया। तो जब वुमेन व्हेन शी enter into a modernity, and because of the tradition of suppression for long period of time, she couldn't achieve that status। तो उस status के लिए in India there are so many reforms। हाँ, जैसे रिफॉर्म में अगर हम देखें तो एक बच्चों ने अक्सर पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, सत्यशोधक समाज, जो कि बनाया था आपके ज्योतिराव फूले और उनकी जो वाइफ थी सावित्री फूले ने। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन आता है या जो ये आता है, इसमें है ब्रह्मो
समाज या प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा को उन्होंने हटाया। प्रार्थना समाज में विडोज रिमैरिज की बात कही कि उनकी रिमैरिज की जाए। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो ब्राह्मण समाज था दैट वाज ड्यूरिंग एंड ऑफ मुगल पीरियड, और ये जो सारे जो न्यू रिफॉर्मर्स थे दे वर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यू कैन से व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड गेनिंग पावर ड्यूरिंग जहांगीर। हाँ, तो मॉडर्न इंडिया में वुमेन का डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, क्योंकि जो सोशल एविल्स थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, बिकॉज ट्रेडिशनल सेपरेशन ना, एक बहुत लंबा सेपरेशन के बाद वो फॉरेन, तो वो फॉरेन इन्वेडेड बिकॉज मुगल वाज मुस्लिम एंड उन्होंने पर्दा सिस्टम जारी किया था। तो यहाँ पे एक लंबे ड्यूरेशन के बाद जब वुमेन को आपने कहा गया कि आपका रोल क्या है सोसाइटी में, तो बिकॉज शी कुड नॉट प्ले हर रोल, तो देन द फ्यू रिफॉर्मर्स रियलाइज वुमेन नीडेड टू बी दिस कुड बी रूल्स रेगुलेशंस फॉर वुमेन्स ऑपरेशन। तो वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए जो कि मॉडर्न इंडिया में थे। एंड इसमें से एक मुझे और नाम आ रहा है केशव चंद्र सेन का, तो ये भी एक बहुत बड़े काफी इनका नाम हुआ, इन्होंने काफी चेंजेस किए। और आपके एमजी रनाडे जो थे महाराष्ट्र के, इन्होंने एजुकेशन में काफी सारे चेंजेस किए। फिर कई सारे एक्ट्स भी आए, जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और विडो रिमैरिज एक्ट हो गया, अबॉलिशन ऑफ सती, अबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, चार्टर एक्ट्स आए बहुत सारे, और अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये सारे शारदा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1929 का। तो ये सारे एक्ट्स में आप ये भी देखिए उसी ड्यूरेशन में बहुत सारे वुमेन के खुद हाथ में लिया कमान। वी हैव रमा देवी, वी हैव एनी बेसेंट, तो ये सारे कुमारी थी, एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी, तो ऐसे बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, राजकुमारी अमृत कौर थी। तो उन्होंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थी नेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी। ये सारी women when they came out of their depression और suppression you can say, कंफर्ट जोन से बाहर निकली, तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। they could contribute in the society, even they could participate in national movement and they could participate in national consciousness जब शुरू हुई तो वुमेन्स जो थी वो अपने हाउसेस से बाहर निकली, उन्होंने खुद अपने हाथ में कमान ली, उन्होंने खुद अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू किया। yes, then they started playing their role, उन्होंने अपने राइट्स के लिए बोलना स्टार्ट किया कि हमारे लिए राइट्स नहीं मिल रहे, हमें राइट्स, जैसे वोटिंग राइट हम लोग ने बात करी, और बहुत सारे राइट्स थे। फिर आप देखोगे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे राइट्स की बात की, जैसे आर्टिकल 15(3) में कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि स्टेट को ये पावर है कि वो यहाँ पे जो वोटिंग राइट है, बहुत सारे लोगों को सरप्राइज होगा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद ही हमारे पास वोटिंग राइट्स आ गए थे। और लेकिन बहुत सारे कंट्रीज, इवन यूरोपियन डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज जिनको अभी इन रीसेंट पास्ट दे हैव वुमेन गॉट अ राइट टू वोट, तो दैट मींस वी आर मोर डेवलप्ड कंपैरेटिवली, एंड आल्सो आवर रिफॉर्मर्स प्लेड अ वंडरफुल रोल इन वुमेन्स डेवलपमेंट। और अभी भी देखें मैम, अगर अभी आप लेटेस्ट देखो, तो मैं बात कर रहा था कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिला, तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे? सोसाइटी के हर एक पिलर्स में। जैसे अगर इंपॉर्टेंट पिलर का अगर बात करें तो पॉलिटिकल स्फीयर में, तो अभी आप देखो, अभी आपका 106 अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसमें वुमेन को 33% दिया गया आरक्षण, रिजर्वेशन देने की बात कही, क्या उन्होंने लॉ बना दिया कि अब इनको लोकसभा में 33% दो रिजर्वेशन, लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको दो रिजर्वेशन 33%, जो कि पहले नहीं था। ये जो वुमेन बिल है ये बहुत लंबे वक्त से पार्लियामेंट में है, पेंडिंग था, और इस पे बहुत सारी डिस्कशंस हुई। हर डिस्कशन यू कैन सी इन यूट्यूब और लोकसभा चैनल में डिस्कशन दिखाए गए हैं इसको डिटेल में। इन सब चीजों को आप समझ सकते हो डिटेल में, समझ के आप सी ये रिजर्वेशन पार्लियामेंट में दिया, कब दिया, क्यों दिया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देने की जरूरत क्यों पड़ गई। यू कुड हैव जनरलाइज्ड, जरूरत क्यों पड़ गई, इसका बैकग्राउंड में आपको ये समझना जरूरी है कि ये जरूरत क्यों पड़ गई। जी, अब हम बात इसमें आते हैं जो आपके टॉपिक नंबर 7 था, इसमें एक और सब टॉपिक है, वो है अर्बनाइजेशन की बात कही गई है, पॉपुलेशन की बात कही गई है, और पॉवर्टी की बात कही है। अब हम आते हैं पॉपुलेशन और उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, जो आपके इश्यूज हैं। तो पॉपुलेशन की बात आपको क्यों पढ़नी है? अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते होगे न्यूज़पेपर, या अगर आप थोड़ा सा भी डिबेट देखते हुए अगर आप बातचीत होती होगी, तो आप बोलते होगे यार इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो अभी अगर बात की जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन के आसपास, लेकिन इंडिया की कितनी है? 1.5 अप्रॉक्स 1.5 बिलियन या 1.44 बिलियन पहुंच चुकी है, जो कि वर्ल्ड में टॉप पे आ चुका है। जब इतनी पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन का मैनेजमेंट नहीं मतलब अच्छे से हो पाएगा, और पॉपुलेशन को वेरियस बेसिक नीड्स नहीं मिल पाएंगी, जॉब्स नहीं मिल पाएंगी,
तो इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी लिए। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो गवर्नमेंट हो या कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, मकान, हाँ, वो आपकी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस हो जाती है, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस हो जाती है। एक तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है, स्लम्स बढ़ने लग जाते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्कीम्स लाए, जैसे हम दो हमारे दो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करें या पॉलिसी की बात करें तो सरकार ने 2000 में एक पॉलिसी निकाली थी जिसे कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये इंडिया को मालूम हो चुका था कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ही तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है और एक्सप्लोजन होने वाला है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है। यहाँ पे आप एक बात ये भी देखिए कि पॉपुलेशन पहले क्या होता था कि पॉपुलेशन बढ़ती भी थी तो देखो शादियां तो बहुत कम एज में हो जाती थी तब भी, और ये जो एलोपैथी डेवलप्ड हुआ तो अभी क्या हो गया है, जो लाइफ स्पैन ज्यादा हो गया है, लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हो गया, बर्थ रेट भी बढ़ रहा है काफी, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज भी ज्यादा हो चुकी हैं, जो कि डेथ रेट काफी कम हो गया, डेथ रेट कम हो चुका है, बर्थ रेट आपका स्टैग्नेंट है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन डेथ रेट कम हो गया जिससे पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ने लगी। तो ये भी एक फीचर अब हम देख रहे हैं कि जो ओल्ड एज होम्स डेवलप हो रहे हैं, और दो वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, दो वी डोंट हैव अ जॉइंट फैमिलीज, तो स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल इन फैमिली एंड दिस थिंग। तो हमारे यहाँ पे जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट है उसमें आप देखिए कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक मेन टॉपिक्स हैं इन यूपीएससी, वेयर यू आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड बाय वर्ड सो दैट यू विल बी एबल टू लाइक आंसर लीस्ट अर्बनाइजेशन पे 200 वर्ड्स, पॉवर्टी पे 200 वर्ड्स, वुमेन रोल 200 वर्ड्स, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन 200 वर्ड्स, ये सारे वर्ड बाय वर्ड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर होलिस्टिक टॉपिक सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर इन 200 वर्ड्स। जी मैम, ये चीजें हैं। इस टॉपिक में टॉपिक नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं, जहां पॉपुलेशन की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो इसमें 2 सब टॉपिक और भी हैं जो है अर्बनाइजेशन और पॉवर्टी। तो अगर आप देखें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके लिंक्ड है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन अगर आपकी इंक्रीज होगी तो आपका अर्बनाइजेशन की नीड बढ़ जाएगी, आपकी वेरियस आपकी फ्लोरिश होंगी, बहुत चीजें बनेंगी, तो आपके अर्बन जो आपके सिटीज हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, फिर सम बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉवर्टी शुरू हो जाएगी। आई विल हियर मैं ये कहूंगी कि अर्बनाइजेशन है ना, अर्बनाइजेशन का प्रोडक्ट है बॉर्न बेबी है पॉवर्टी एंड स्लम, जहाँ पे आप डेवलपमेंट करोगे, डेवलपमेंट करने के लिए आप लेबर को लाओगे नियर बाय 2 टियर सिटीज, फैक्ट्रीज बनेगी आपको, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे जब आएंगे फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी बना रहे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप वो रेसिडेंशियल एरिया के लिए डेवलप कर रहे हो, वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया बनेगा, वहाँ पे कोई भी आएगा तो डेफिनेटली वो किसी एमएनसी में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेगा, तो वहाँ पे अब क्योंकि वुमेन ऑल्सो गॉट पावर एंड फ्रीडम टू वर्क, दोनों लोग न्यूक्लियर फैमिली बनेगी, दोनों लोग काम पे जाएंगे, तो व्हाट दे नीड इज अ हाउस हेल्पर, यू नीड अ प्लम्बर, यू नीड दिस दैट एवरीथिंग। तो हर एक फैमिली को सर्वाइव करने के लिए किसी मेट्रो सिटी में आपको इमीडिएटली यू नीड टू हैव लिस्ट 6-7 पीपल इन योर सपोर्ट। एक न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, जॉइंट फैमिली तो वैसे ही अकोमोडेट कर लेती है एक दूसरे को, तो न्यूक्लियर फैमिली में तो वहां पे आपको 6-7 लोगों की जरूरत पड़ जाती है। इट मींस वो 6-7 लोग तो आप घर पे तो नहीं रखोगे, तो उनकी इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। व्हाट कहीं भी एक डेवलप्ड सोसाइटी के इमीडिएट बगल में आप देखना एक स्लम जनरेट हो जाता है, एक स्लम पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन का जो मेन इश्यू है वो है अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। जी, अर्बनाइजेशन में मेन चीज आपको क्या पढ़नी होती है, एक तो मैनेज कैसे किया जाए, दूसरी चीज अर्बनाइजेशन में बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक जो नीड्स हैं वो सारी कैसे पूरी की जाए, तो इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। और फिर ये पढ़ना पड़ता है कि सरकार ने क्या पॉलिसीज बना रहा है, क्या इनिशिएटिव ले रही है सरकार, जिससे कि अर्बनाइजेशन मैनेज टाइप से आपका हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको अगर 2-3 एग्जाम्पल दूं, तो आपका एक है अमृत मिशन। अमृत मिशन में आपके सिटी को कैसे उसमें पानी की फैसिलिटीज कैसे पूरी की जाए, ड्रेनेज सिस्टम कैसे आपका ठीक किया जाए। इसके अलावा एक और इसमें है स्मार्ट सिटी मिशन, उसमें वेरियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इनको ठीक करने की बात कही गई है। फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसे करे जाए क्रिएट, ये भी सरकार काम कर रही है। हृदय मिशन है, हृदय, वो भी स्कीम तो इवन इन दिस यू कैन ऐड इन मॉडर्न एआई टाइम के गवर्नमेंट ने एक मल्टी नेशनल कंपनीज को भी यहाँ पे अकोमोडेट किया है फॉर अर्बन डेवलपमेंट।
फॉर एग्जाम्पल वी हैव फैसिलिटीज लाइक ओला, वी हैव फैसिलिटीज लाइक स्विगी, जोमेटो, ये कुछ तरह के इस तरह की कंपनीज हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं। वी आर डिजिटली, बहुत सारी अकोमोडेशन है हमें डिजिटल फील्ड्स में, तो ये सारी चीजें अर्बनाइजेशन में अकोमोडेट करती हैं, जो कि फैसिलिटेट करती हैं। इवन उसका एंजॉयमेंट स्लम भी उठाता है। अब अगर यहाँ मैम देखें, हम लोग तो अर्बनाइजेशन के बाद यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी में हमें क्या पढ़ना है कि वेरियस टाइप्स क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत सारा सरकार ने काम किया है। फिर इसमें भी हमें ये पढ़ना पड़ता है कि पॉवर्टी एलिवेशन कैसे हो रहा है, सरकार पॉवर्टी को कैसे हटाएगी, तो कैसे अपलिफ्ट करेगी ये जो आपका वल्नरेबल सेक्शन है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे सेक्शन है। पॉवर्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स लाइक स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, इतनी बहुत सारी आई हैं। इसमें मैम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सरकार कैसे कर रही है अपलिफ्टमेंट। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट समझना है, आपका सेल्फ जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे क्रिएट होगी, दूसरी आपकी जो बेसिक नीड्स है वो कैसे पूरी होंगी। तो इनके लिए बात यहाँ पढ़ी जाती है, यहाँ पे ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। As we've discussed mains GS paper 1, we discuss many topics, Indian culture, art and freedom struggle, everything. Here the next topic we have a globalization and globalization on Indian society. According to UPSC syllabus, what UPSC says, effects of globalization on Indian society. First of all, aspirant need to understand what is globalization, what could be its effects on Indian society. Both are different topics completely. Society is different and globalization is different. Globalization comprises of market, trade and interlinking and interconnection and interdependency each other country-wise, globally. Like for example, we have multicultural within the country and outside we are bringing outside culture. Outside culture might be a technology, a trade and pattern and philosophy and thoughts and political thoughts it might be, and so many international conferences take place according to global this thing problems and issues. In globalization, usually what UPSC asking is effects on Indian society. You see the syllabus has the sequence. First, what UPSC asked, culture. Indian culture. Then, what UPSC asked, the Indian national movement, freedom struggle. Then, what UPSC asked is world history. And then, see, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो सिलेबस है GS पेपर 1 का पूरा इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। आपका पहले एक इशू होता है, फिर दूसरा इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वी हैड अ वेरी प्रॉस्पेरस कल्चर, प्रॉस्पेरस हिस्ट्री। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है, our culture has been destructed and so many destructions destroyed and so many invaders came. And next, when we were having a national movement in somewhere in European countries, might be in American countries, freedom struggle was going on. तो यहाँ पे यूपीएससी के जो सीक्वेंस में जो चीजें आती हैं, यहाँ जबकि ग्लोबलाइजेशन क्यों पूछ रहा है, इसको समझने के लिए आपको यू हैव टू लुक बैक द 15th-16th century was a century of discovery. In India there is a colonization, then there was a freedom struggle. तो यहाँ पे freedom struggle हो रहा था. India was the biggest market, we know. India was the biggest producer of agriculture products and India was the biggest producer of raw material, and India was the biggest market and consumer for इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्थ ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, एंड कैपिटलिस्ट क्लास इज द रीजन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड उसके बाद में क्या हुआ, आपका मार्केट्स बढ़ गए, मतलब शेयर मार्केट इन अमेरिका एंड इन फेडरल कंट्रीज, हाँ, यूरोपियन फेडरल बैंक, इन सब के बाद देन यू हैव वर्ल्ड वॉर. जब प्रॉस्पेरिटी हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, वर्ल्ड वॉर हुआ, और वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट यूएनओ का प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन. तो ये सारी चीजें एक के बाद सीक्वेंस में आती हैं हमारे जीएस पेपर 1 में. आपको होलिस्टिकली जब आप समझने की कोशिश करोगे, हाँ, ग्लोबलाइजेशन आ गया. अब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट on Indian society. Here Indian society has a big term. Society में आपका culture आ जाएगा, आपका religion आ जाएगा, various sections आ जाएंगे, low class, economic class आ जाएगा आपका. हाँ, because it is India, we have a caste and religion also. तो ये सारी चीजें globalization में हर एक चीज affect होती है, इसके impacts पड़ते हैं. caste, religion, हाँ, क्योंकि हमारा जो Indian culture है उसमें upper and lower जो sections हैं, caste हैं, हाँ, तो
तो इसमें यहाँ पे पहले हमारे जो इंडियन कल्चर में ये था कि कोई पानी पी सकता था, कोई वैसे कोई नहीं पी सकता था, लेकिन अब यहाँ पे KFC में जाके सब लोग बैठ के खा सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी व्हेन हियर वेयर इफ यू टॉक ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन से जैसे कि फोन आया है, कोई भी यूज कर सकता है। मान लो पूरे वर्ल्ड में एक गैजेट प्रोड्यूस किया किसी ने, उसको बनाया किसी ने, असेंबल किसी और कंट्री में कर रहे हैं, कोई और लेबर को इन्वाइट करके वहां पे असेंबल कर रहा है, कोई और उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, कोई और उसको टैक्स पे कर रहा है, कोई और कोई और यूज कर रहा है। मतलब इट इज मर्ज ऑफ सो मेनी थॉट्स, इट इज मर्ज ऑफ कंप्लीटली सो मेनी पीपल्स इन्वेंशंस। मतलब हर एक चीज किसी और ने इन्वेंट की होती है। मान लो किसी ने डिजाइन बनाया, किसी ने प्रोडक्ट बनाया, किसी ने मटेरियल बनाया, किसी ने मेटल बनाया, कहीं और से इंपोर्ट करके ला रहे हैं और कहीं एक जगह आके उसको असेंबल कर रहे हैं, कहीं और पे हो रही है। यस, और इसका इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है जहां पे आप उस चीज को, उस प्रोडक्ट को यूज करते हो, मार्केट जहां पे, हाँ, मार्केट जहां पे होती है, जो कंज्यूमर पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड बेसिकली वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब इफेक्ट्स की बात आती है, डियर एस्पिरेंट्स, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इफेक्ट्स कुड बी having two different, एक तो होता है पॉजिटिव इफेक्ट्स, दूसरा होता है नेगेटिव इफेक्ट्स, एंड इवन यू कैन से पॉजिटिव एडवांटेजेस एंड नेगेटिव एडवांटेजेस। तो पॉजिटिव एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? इंडिया में फॉर एग्जांपल वी हैव माइग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझना, देयर आर सर्टेन कॉलर का जो कलर होता है ना, उस पे बात चेक करने जॉब्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर। अब यहाँ पे आप किसी भी कंट्री के, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन से इंडिया की सोसाइटी पे कैसा इफेक्ट पड़ा? आंध्र प्रदेश, मोस्ट ऑफ द पीपल माइग्रेट टू अमेरिका, यूएसए, जहां पे वो सॉफ्टवेयर जॉब करते हैं और वहां पे जाके स्टे करने लग जाते हैं। दे विल हैव, वहां पे ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, फिर वहीं पे जॉब करने लगते हैं। इंडिया को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? यहाँ पे इनके जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, तो वो वहां से उनको रेमिटेंस भेजते हैं। तो एक तो मतलब इस तरह का हो गया। अब रही बात गुजरातियों की, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो गुजरातियों में क्या करते हैं? दे डू ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, बिकॉज ऑफ सूरत इज द वन ऑफ द एंशिएंट पीरियड से, एक बात, हाँ, सूरत एंशिएंट पीरियड से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ये था, मतलब एशिया में, दुनिया का तो नहीं कह सकते, एशिया में सबसे बड़ा हार्बर था ट्रेड के लिए, हाँ, बिगेस्ट हार्बर। तो हमारे ये भी अंग्रेज भी वहीं पे आए थे, तो उनके वहां पे भी ये फैक्ट्री उनकी वहीं बनी थी, हाँ। तो सूरत एंशिएंट पीरियड, इवन मिडिवल पीरियड में, एंशिएंट पीरियड में, इवन ड्यूरिंग मुगल, इट वाज द बिगेस्ट हार्बर। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस ये भी जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, जब सूरत गुजराती ट्रेड करते हैं और वो वहां से प्रॉफिट लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल तमिलियंस, व्हाट तमिलियंस डू, दे हैव मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड दे हैव अ ट्रेड रिलेशंस। एंड इंडिया के जो पेनिनसुलर स्टेट है ना, तो पेनिनसुलर स्टेट्स में जहां जहां पे मान लो तमिलनाडु के लोग हैं, बहुत सारा मलेशिया माइग्रेट करते हैं, और केरला के लोग बहुत सारे मिडिल ईस्ट जाते हैं, दे गेट इनटू हॉस्पिटैलिटी एंड गो नर्स बनते हैं, तो नर्सिंग जॉब्स के लिए बहुत सारे मिडिल ईस्ट जाते हैं। तो इंडिया के कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, ये तो बहुत बड़े कंज्यूमर हैं हर प्रोडक्ट के पॉपुलर डेमोग्राफी के हिसाब से। और रही बात फॉर एग्जांपल कश्मीरी लोग जाते हैं यूरोप ट्रेड करने के लिए, मतलब शॉल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, उस तरह के। तो मतलब हर एक इलाके के लोग हर एक अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व होके, और ओवरऑल बहुत सारे एजुकेशन के लिए भी जाते हैं माइग्रेट करके। सी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिवली ऑन इंटरनेशनल लेवल व्हाट इंडियन सोसाइटी हैव। और रही बात इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनके लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स हो गए, हर तरह की फैसिलिटीज हो गई। मान लो अमेरिका में कोई कार लॉन्च हुई है, वी कैन हैव इट, हाँ, इंडिया में आ रही है। तो इस तरह के यस इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे व्हाट एवर यू हैव डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल लेवल, वी कैन हैव इट इजीली। ये हो गए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए फ्यू कंट्रीज विल गैदर हु आर फेसिंग इट, हु आर गोइंग टू फेस इट, दे गैदर एंड दे विल ब्रिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये हाँ, यूएन, हाँ, तो कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी प्लेस करते हैं। आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? यस, हाँ, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट कुड बी इम्पैक्ट ऑन योर सोसाइटी एज वेल, क्योंकि बिकॉज यू लिव इन अ वेरी ह्यूज रीजन। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये अगेन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल इफेक्ट। अगेन यहाँ पे एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। किसी भी कंट्री में कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है, अब वो चाहता है कि इंडिया में इंडियन सोसाइटी
पे हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब उसका कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करके मोनोपोली बनने के लिए मार्केट में वो सारी चीजें इंडिया में डंप करता है। वो अलग बात है कि इंडिया विल हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट, लाइक डंपिंग एक्ट वगैरह, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट्स में आ जाते हैं, एंटी रूल्स बनाए जाते हैं। यस यस, एंटी रूल्स बनाए जाते हैं। अब आते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स पे। नेगेटिव इफेक्ट्स कुड बी कोई आपको बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे कोई एम्प्लॉयमेंट वहां पे किसी ने फेक बना दिया, आपको यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके एम्प्लॉयमेंट देंगे करके वो लेके जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन मिडिल ईस्ट वहाँ पे घर के डोमेस्टिक हेल्पर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे औरतें होती हैं स्पेशली गुजरात की या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की, जो बांग्लादेश भी जाती हैं फॉर एग्जांपल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मर्चेंटाइज में, और यस यस, कुछ फैक्ट्रीज में बांग्लादेश जाती हैं काम करने के लिए औरतें, और उनको क्या करते हैं, जॉब का झांसा देके तो एक फेक प्रोफाइल दिखा के उनको बुला लेते हैं, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो इस तरह के कुछ और भी इम्पैक्ट्स हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। हाँ, और बिकॉज वी हैव इंटरनेशनल ग्लोबल दिस थिंग कनेक्टिविटी इन टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे साइबर क्राइम्स भी होते हैं। किसी की बैंक का किसी और ने पता नहीं जमैका से किसी ने फोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा आपके बैंक में कुछ हो गया, और फोन करके निकाल लिया, और वो कुछ इंडियंस भी बैठ के जमैका का अकाउंट बनाते हैं बिकॉज इट इज इजी नाउ, तो दे विल डू इट। म्यांमार में भी ऐसे एग्जांपल्स आ रहे थे, हाँ, वहां से भी न्यूज़ आ रही थी कि बता रहे एग्जांपल्स। यस यस, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू व्हाट कुड बी द नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स में इन सारी चीजों के, फॉर एग्जांपल टेररिज्म, हाँ, टेररिज्म ऐसे ही नहीं बढ़ता। टेररिज्म के लिए हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाला सिस्टम होता है, हुंडी सिस्टम होता है, उसके थ्रू उनको वो मिलता है, फाइनेंस मिलता है, लीगल फाइनेंस। यस, अब क्योंकि आप डोनेट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी, तो आराम से उनको फाइनेंस मिल जाता है। इससे आप कहीं पे भी इजीली माइग्रेट कर सकते हो और कहीं पे भी अटैक कर सकते हो। ये सारी चीजें, टैक्स इवेजन, यस यस यस, कुछ कंट्रीज होती हैं जो टैक्स हेवन होती है, टैक्स हेवन भी होती हैं। तो ये सारी चीजें, सिंगापुर है, दुबई है, मलेशिया है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो टैक्स हेवन भी माने जाते हैं, जहाँ पे आप इलीगली किसी शेल कंपनी बना दी और इंडिया में लॉन्च कर दी। इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे, वोडाफोन का एक हुआ था, और इस तरह के जेएमआर के साथ एक हुआ था, वेनेजुएला में भी ये केस मिला था। यस यस, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो नेगेटिव इफेक्ट इंपैक्ट करते हैं। इन ग्लोबलाइजेशंस इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव इफेक्ट्स एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स, यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल बिकॉज दिस कुड बी द क्वेश्चन इवन इन योर एसे। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, आपका ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, और उसके बाद में उसका काम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, काम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके पावर्स क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे उसके पावर्स क्या है, टाइप्स आप देख सकते हैं कि टाइप्स भी क्या होते हैं, एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो ये सारी चीजें वंस यू गो थ्रू, देन कम टू एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे 3-4 टॉपिक्स को मर्ज करके एक ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। मॉरली उसके साथ कोई बैठता नहीं है, उसके साथ कोई अच्छी बातचीत नहीं करती। सो मेनी प्लेसेस ऐसी भी जगह है जहाँ पे मर्द को अलग सैलरी दी जाती है, औरत को अलग सैलरी दी जाती है फॉर द सेम जॉब, फॉर द टाइम, ब्रिंग हिम इन द कंपटीशन एंड गिव हिम द फैसिलिटी टू प्रोवाइड हिम द एडवांटेज ऑफ। और उनके अपने पर्सनल लॉज भी हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं। In GS paper 1, after globalization and its impact on Indian society, what UPSC says, social empowerment and communalism, regionalism and secularism. तो यहाँ पे देखो आप, हर एक word has a big topic and it has a detailed discussion, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे एक लाइन में UPSC ने बोल दिया, मेंस में, वो भी GS पेपर 1 में। तो सोशल एम्पावरमेंट, सोशल, योर सोसाइटी, योर सोशल लाइफ, वहाँ पे एम्पावरमेंट मतलब इंडिपेंडेंस, बीइंग एडवांस, बीइंग इंडिपेंडेंट, बीइंग नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप अपनी बात कर रहे हो, वहाँ पे आप अश्योरेंस दे रहे हो, कल्चरल डोमिनेंस। यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, मान लो आप किसी गाँव में हो, आप वहाँ पे एक वर्नेबल सेक्शन से हो, या मतलब इकोनॉमिकली आप बैकवर्ड हो, या इंडिया में कास्ट रिलीजन है वगैरह, तो एक बैकवर्ड क्लास से आप आते हो, तो वहाँ पे मान लो SC से आते हो, वहाँ पे अगर आपको अपनी बात रखनी है, तो सोसाइटी में अपर क्लास लोग होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकली डेवलप्ड लोग होते हैं, तो हाई क्लास लोग होते हैं, वहाँ पे आप अपनी बात रख रहे हो, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस है, नहीं है, कितना है तो कितना है, आपकी बात को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, आप इंसाफ की बात कर रहे हो, कितनी मिल रही है आपको इंसाफ, कितना आपका हक
अदा किया जा रहा है, आपको कितना, आपकी बात रखने का आपको एडवांटेज कितना मिल रहा है, आपको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मिलने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट आपको कितना मिल रहा है, इंडिपेंडेंस कितना मिल रहा है अपनी बात करने का। ये एक टर्म ऐसा है जहां पे आपको, मान लो आप कोई नौकरी लेने जा रहे हो, अब वहां पे किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पे आप एक वर्नेबल क्लास से आते हो, या मान लो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या हर तरीके के वीकर सेक्शन से हो, तो आप मान लो आप विमेन हो, आप ट्रांसजेंडर हो, हाँ चाइल्ड हो, तो अब हाँ ये सो यू हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, सो इन सो मेनी प्लेसेस ऐसी भी जगह है जहाँ पे मर्द को अलग सैलरी दी जाती है, औरत को अलग सैलरी दी जाती है फॉर द सेम जॉब, फॉर द टाइम व्हाट दे हैव टेकन। हाँ स्पोर्ट्स में मिलता है, इंपॉर्टेंस कम मिलता है। फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम वेज कम मिलती है, हाँ वेज कम मिलती है, इंपॉर्टेंस कम मिलती है, पॉपुलैरिटी कम होती है, फेम कम मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मान लो किसी कंपनी में एक ट्रांसजेंडर जाके काम करता है, वो ऑर्डिनरी जैसे कि कोई मेल काम करता है या फीमेल काम करती है, सेम जॉब के लिए हाँ लेस वेज भी हो सकता है और डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकती, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकती, मॉरली उसके साथ कोई बैठता नहीं है, उसके साथ कोई अच्छी बातचीत नहीं करता। देखो मॉरली आप जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मॉरली आपको हर जगह डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, तो आपके काम में भी उसका फर्क पड़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, योर राइट्स हैव बीन, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको आपको समझ के ये आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए कि डीपीएसपी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, यस राइट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 है डीपीएसपी, जिसमें आप इन सारी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हो। स्टेट लेवल क्या होती है, मान लो कोई ट्राइब है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे के साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकता, एंड देयर हैज टू बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू ब्रिंग हिम इन द कंपटीशन एंड गिव हिम द फैसिलिटी टू प्रोवाइड हिम द एडवांटेज ऑफ इवन दो ही बिलोंग टू पर्टिकुलर रीजन, वहां पे अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ये सारी चीजें हैं जो एम्पावरमेंट में आती हैं, जो कि सोशल इक्वालिटी के लिए एम्पावरमेंट का होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो नाउ हियर द कम्युनलिज्म, बिकॉज इंडिया हैज द डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट सिस्टम, तो यहाँ पे कम्युनलिज्म क्या है, डिफरेंट है, हाँ रिलीजन डिफरेंट है, आइडेंटिटी उनके लिए अलग है। यस एक तो यहाँ पे जितने रिलीजन है उतनी हेरिडिटरी है, और मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स हैज बीन माइग्रेटेड टू इंडिया, दे नेवर बिलोंग टू इंडिया, दे हैव बीन माइग्रेटेड, और उनके अपने पर्सनल लॉज भी हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं। अब फॉर एग्जांपल इस्लाम इज माइग्रेटेड टू इंडिया एंड इट हैज इट्स पर्सनल लॉ शरिया लॉ। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ दे अकोमोडेट फॉर कम्युनल दिस थिंग, बिकॉज द पॉपुलेशन इज नॉट कम नहीं है, मतलब कुछ हद तक बराबरी में है। और यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जैसे कि पारसी हैं, दे आल्सो माइग्रेटेड एंड दे आर इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया, और उनके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, वो अपनी गैदरिंग कहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस तरह से वो अपनी फंक्शंस कर सकते हैं, बिकॉज इन इस्लाम दे हैव गिवन सर्टेन रूल्स रेगुलेशन दैट कम अंडर माइनॉरिटी। उन हर एक कम्युनल कम्युनिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेट किया है, और उसके एडवांटेजेस क्या है, कैसे उसको डिसएडवांटेजेस में लेके जाते हैं, कहाँ पे उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है, कम्युनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो सकता है, हाँ एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो सकता है, चीजें देखना। हाँ यस कुछ सेक्शंस को आप इवन टेररिस्ट इसमें भी कैटेगरी में आ जाते हैं, कुछ माइग्रेंट्स भी होते हैं, और बहुत सारे रेफ्यूजीज भी आ जाते हैं। इसी इंडिया में जब पार्टीशन हुआ था तब बहुत सारे माइग्रेट्स आ गए थे इंडिया में, पार्टीशन से ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद कम्युनिज्म पार्टीशन से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे हिंदू आए, रेफ्यूजी आए, उनको क्या क्या राइट्स दिए गए, और दो दे आर हिंदू, यहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं थी। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको डिटेल में पढ़ के समझ के यू विल बी एबल टू आंसर। एंड नाउ रीजनलिज्म इन इंडिया, यू हैव रीजनलिज्म। अगर उसकी बात हो तो रीजनलिज्म में आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि रीजनलिज्म में आपको कैसे उसके टाइप्स होते हैं, क्या फीचर्स हैं, बिकॉज क्या उसके आपके नेचर क्या है। तो अगर इन तीनों टॉपिक्स को देखें जो है आपके कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, तो इनमें कॉमन चीज है, जैसे जो कम्युनलिज्म होता है वो क्या है, उसका जो नेचर है वो क्या है, वो है फेवर करता है सिंगल कम्युनिटी को। यही सब जो रीजनलिज्म है वो क्या है, वो ये है कि वो फेवर करता है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को, रीजन को। और जो आपका सेक्युलर जो आपका नेचर होता है उसमें ये होता है कि उसमें किसी को फेवर नहीं किया था, किसी पर्टिकुलर आपके रिलीजन को। तो ये चीजें आपको इसमें सबसे पहले समझनी होती है कि तीनों सिमिलर काइंड की चीजें हैं, तीनों एक
की जैसी हैं चीजें। फिर आपको इसमें ये चीज भी पढ़नी होती है कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और जो सेक्युलरिज्म है, इनके क्या टाइप्स हो सकते हैं, इनके लिए क्या पॉलिसीज बनी, गवर्नमेंट कैसे इनको कर रहा है टैकल। इंडिया इज अ बिग वास्ट कंट्री। इंडिया इज डिवाइडेड इन मल्टीपल रीजन्स। मान लो कश्मीरी है, ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन दे हैव सर्टेन राइट्स, रेगुलेशंस, उनके कुछ अपने वक्त के होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव ईस्टर्न कंट्रीज, जो गुजरात है और यहाँ असम है, उसमें वक्त का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन का। ये ऑन रीजनल सेक्शंस वी हैव डिफरेंट डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। रीजनलिज्म है और जो सेक्युलरिज्म है, इनमें बेसिक चीजें ये हैं कि जो रीजनलिज्म है इसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन होना ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। जैसे एक रीजन आपका तो ग्रो हुआ काफी ज्यादा, एक रीजन आपका ग्रो नहीं कर पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक में नहीं बन पाया, एक में बन गया था। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, हिली स्ट्रक्चर रहा है, लेकिन अदरवाइज नॉर्थ इंडिया में देखो, साउथ इंडिया में देखो तो काफी अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। एजुकेशन नॉर्थ ईस्ट में या आपके कुछ नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां उतनी अच्छी नहीं रही है। तो रीजनलिज्म में अगर आप एक बेसिक समझो चीज, तो इसमें आपका एक कुछ आपके सोशियो पॉलिटिकल इसमें फीचर होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सन ऑफ सॉइल, तो सन ऑफ सॉइल क्या है, ये भी एक रीजनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है कि लोग ये कहते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया सिर्फ मेरा है और उन एरिया में रहने वाले पीपल्स का है। लोकलाइजेशन यानी लोकल पीपल हैं, उन्हीं का ही होल्ड उस पर्टिकुलर एरिया में हो। जैसे साउथ इंडिया में अगर बात करी जाए तो साउथ इंडिया में ये सन ऑफ सॉइल, जैसे महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि सन ऑफ सॉइल की जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो कई बार सामने आई है। लोगों ने ये डिमांड करी कि नहीं, ये रीजन सिर्फ हमारे जो लोकल लोग हैं उन्हीं के लिए है, जॉब्स जो मिले लोकल लोगों को ही मिले, रिजर्वेशन भी उन्हीं लोगों को भी जो है मतलब उन्हीं लोगों को मिले। तो रीजनलिज्म बेसिक इसमें क्या है कि ग्रुप जो लोग है, ग्रुपिज्म की बात होती है, ये सारी बातें इसमें होती हैं। इसमें अब रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म में ये चीज ये भी देखी जाती है कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे और इंडिया के समाज पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमें यही पढ़ना है कि इनसे इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, फाइनली इनसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या इनसे क्या अच्छा हो रहा है। दोनों चीजें पढ़नी होती हैं, लेकिन बेसिकली हम जब देखते हैं तो हम ये चीज पढ़ना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन फॉर्म से। जैसे आपका अगर सेक्युलरिज्म का अगर बात करी जाए तो सेक्युलरिज्म अगर आप देखो तो आपका जो स्ट्रिक्ट नेचर मिलता है सेक्युलर आपका स्टेट का, वो आपको मिलता है फ्रांस में। जो फ्रेंच आपकी स्टेट है या जो फ्रेंच आपके पीपल हैं, वो स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म करते हैं फॉलो, जबकि इंडिया में काफी मिडिल पाथ करा जाता है फॉलो। इंडिया में एक पॉजिटिव अप्रोच होती है फॉलो, काफी स्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी एड मिलता है, उनको भी पैसा मिलता है कि वो भी अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सके। सेक्युलरिज्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इंडिया में क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर फॉलोज एनी रिलीजन एंड आल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बिकॉज़ किसी रिलीजन को फेवर नहीं किया था, प्रो नहीं है, इंडिया स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है कहने की बात यहाँ पे। यहाँ पे सेक्युलरिज्म अलग चीज है। व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एस्पिरेंट को पहले व्हाट इज सेक्युलरिज्म पहले समझना चाहिए और इंडिया में क्या नेचर है इसका। सेक्युलरिज्म ये है का नेचर क्या है? सी, जब मैं इंडिविजुअल हूँ, मान लो मैं मुसलमान हूँ, सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे किसी और रिलीजन को मुझे डिसरेस्पेक्ट करना या उसकी बुराई करना या उसके मतलब नेगेटिव चीजों को ये करना नहीं है। इंटॉलरेंस होना चाहिए, यस, इंटॉलरेंस डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में, यस, तो वो इंडिविजुअल पे आ जाता है। और दूसरी चीज में ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करते हों, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा ना रहे जब वो सेंट्रल में आ जाए, सरकार बना ले, तो वो किसी एक रिलीजन को बेनिफिट दे। ये भी सेक्युलरिज्म का एक फॉर्म है जो इंडिया में फॉलो होता है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि प्रीएम्बल में देखा जाए, प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म मेंशन किया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक तो किसी रिलीजन को पोज भी नहीं करता, फॉलो भी नहीं करता, एंड इट हैज इक्वालिटी, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी, फॉलो करता है। यस, इक्वल, गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन। If government of India giving equal rights, equal importance to particular religion, means they are giving equal importance to all religion. If they are not giving importance to any religion, that means they are not giving importance to any religion. Political party का जो agenda होता है, उनका जो mindset होता है, interest होता है, that is completely different from the government of India. लेकिन हाँ, आप
आपने सही कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट नहीं है कि आफ्टर कमिंग इनटू पावर टू गिव इंपॉर्टेंस टू पर्टिकुलर रिलीजन पे। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज वंस दे बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि इंडिया की जो स्टेट है, जो उसका नेचर है, उसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे बात अच्छे से लिखी है कि उसमें आपको राइट टू इक्वालिटी देना है, रिलीजियस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सेक्स बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर आप राइट्स देंगे, आप कोई इसमें फेवर किसी को नहीं करेंगे। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो इसमें नेचर आपको पढ़ना होता है, इसमें ये चीज ही पढ़नी होती है कि अब इसके लिए सरकार कैसी पॉलिसीज बना रही है, कैसी स्कीम बना रही है, क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर मिल रहा है, या जैसे मैम ने एक बात आपको शुरू में बताई कि सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट आप देखो कि सरकार उन सेक्शंस के लिए ज्यादा स्कीम बनाती है जो वीकर सेक्शन है। अब चाहे वो आपके सोसाइटी के सेक्शंस हो, या आपके कम्युनिटी के सेक्शन हो, या किसी कास्ट के सेक्शन हो, या किसी आपके माइनॉरिटी के सेक्शन हो, डिफरेंट सेक्शन जो वीकर सेक्शन है उनके लिए स्कीम बनाती है। जैसे मैं आपको अगर स्कीम दूं तो जो भिखारी होते हैं, जो आपके बेगर्स होते हैं, उनके लिए सरकार ने कई सारी स्कीम बनाई, जिसमें से एक स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इसमें ये बनाती है, आपको पैसे मिलते हैं जो भिखारियों को कि वो अपना स्टॉल बना सकें, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो अपना स्टॉल बना सकें, क्योंकि ये बहुत ही वीकर सेक्शन है समाज। हाँ, वीकर सेक्शन यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो अगर आप देखें स्कीम में तो सेक्युलर बेसिस पे स्कीम नहीं बनी, जो वीकर सेक्शन है उनके बेसिस पे बनी स्कीम, कि जो वीकर सेक्शन उनका एम्पावरमेंट किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो सेक्युलर अगर आप सेक्युलर नेचर देखें तो आपको ये भी समझ में आता है कि सेक्युलर नेचर में ये चीज एक है काफी इंपॉर्टेंट पिलर कि वहां पे वीकर सेक्शंस के लिए बनाई जाए स्कीम, किसी कास्ट के लिए, किसी आपके पर्टिकुलर रिलीजन के लिए स्कीम ना बनाई जाए। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। ये इस टॉपिक में लगभग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। आप यहाँ पे हर एक टॉपिक को अलग अलग रख के पढ़ना है और उसके बाद इन चारों टॉपिक को मर्ज करके कंबाइन करके समझना है, क्योंकि ये चारों चीजें सोसाइटी का ही पार्ट है। चारों चीजें वेदर इट इज सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, मानो मैं इंडिविजुअल हूँ तो ये सारी चीजें मेरे अंदर ही होनी चाहिए। ये सारी सोशल फिलॉसफीज हैं बेसिकली। हाँ, PSC कैन आस्क यू आफ्टर इन्फ्यूजिंग दीज वर्ड्स इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप एक ही सवाल में ये सारी चीजों को जब यूपीएससी मर्ज करके पूछा जाए तो एटलीस्ट देखो ये अलग अलग टॉपिक हैं, बहुत वास्ट टॉपिक हैं, बहुत डिटेल टॉपिक हैं, बहुत बारीकी से इसको समझने की जरूरत है। जब यूपीएससी पूछता है इन सारे टॉपिक्स को मर्ज करके, तब आपको कम से कम इनको क्विज करके यू विल बी एबल टू आंसर इन 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, बिकॉज इट हैज अ वास्ट एरिया, वास्ट रीजन, वास्ट अंडरस्टैंडिंग एंड माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि इनकी जो मान लो सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म ये बहुत एक दूसरे से माइन्यूट टर्म्स और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक चीज कही मैम, ये बात कि ये जो है ये सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं। तो इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, आपको मैं आइडिया यहाँ बता दूं, एक सिंपल आइडिया। इन वेरियस फिलॉसफीज का, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, चाहे वो रीजनलिज्म हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, एनी फिलॉसफी, इनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है और इनका इम्पैक्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे क्या पड़ रहा है, यही बेसिक आपको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आपको इसमें यही देखना होता है कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास करती है, क्या बना रही है पॉलिसीज, क्या स्कीम्स। तो आपको बस इतना पढ़ना है कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वेरियस सेक्शंस पे, जैसा मैंने आपको बताया, सोसाइटी पे और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, और फिर कैसी उसके लिए इवैल्यूएशन के लिए कैसी स्कीम, कैसी पॉलिसीज बना रही है सरकार। टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट यूपीएससी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन, और हमने ये भी देखा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पेपर्स और उनके मार्क्स और उनके कट ऑफ क्या होते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी चेक किया कि सिलेबस क्या होता है पेपर 1 में, इन पेपर 2 व्हाट विल बी द सिलेबस। इन पेपर 1 वी डिस्कस एंटायर सिलेबस इन डिटेल एंड आल्सो वी डिस्कस सीसैट पेपर इन डिटेल, एंड नाउ वी डिस्कस्ड इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी का एग्जाम, जो मेंस के जो 4 जीएस के पेपर होते हैं वो भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और यहाँ पे हमने पेपर 1 जीएस का सिलेबस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और इसमें टॉपिक्स थे, पहला जो टॉपिक था इंडियन कल्चर वी डिस्कस इन डिटेल वेरी प्रॉपरली, क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमने वो भी डिटेल में डिस्कस किया। और हमने दूसरा टॉपिक था जीएस पेपर 1 में 12 टॉपिक्स हैं, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू यूपीएससी देयर आर 12 टॉपिक्स इन जीएस 1। तो 12 टॉपिक्स में द फर्स्ट टॉपिक विल बी इंडियन कल्चर, वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल, एंड ऑल्सो द सेकेंड टॉपिक इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स इसके अंडर में आते हैं, दैट ऑल्सो वी डिस्कस इन डिटेल प्रॉपरली। वी डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट, हर टॉपिक को हमने इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया। एंड ऑल्सो यूपीएससी से द थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो वी डिस्कस
डिस्कस के पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पे, कौन से मोमेंट्स इंपॉर्टेंट है। और देखिए हाँ, कंट्रीब्यूटर्स जब यूपीएससी बोल देता है फ्रीडम स्ट्रगल, तो वहाँ पे हम कोई इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। इट इज अप टू यूपीएससी व्हाट यूपीएससी फील्स इट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा काम है कि सारी चीजें पढ़ना। तो व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, हाउ मेनी टॉपिक्स विल कम, कितने कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं इसके अंडर में, फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल। एंड आल्सो द फोर्थ पॉइंट वी डिस्कस्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस यस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, यस। तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए, वी हैड वॉर्स, वी हैड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर कैसे गया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। एंड आल्सो वी डिस्कस्ड द फिफ्थ पॉइंट, वी डिस्कस्ड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में क्या हुआ, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यस हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए, वर्ल्ड वॉर्स हुए, रेनेसांस हुए, जो पूरे टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में, वेरियस फिलोसफीज हैं, पॉलिटिकल व्यूज हैं, कॉलोनीज थे, ये सारी चीजें हमने बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के सेलेंट फीचर्स क्या है, सोसाइटी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। आपकी सबसे पहले तो आपकी सोसाइटी क्या है, इसमें हमने सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए, ताकि एस्पिरेंट्स को परेशानी ये ना हो कि आप ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं क्या, क्योंकि जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया या आर्ट्स फील्ड हो गए। देखो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को तो कई चीजें पता होती हैं जनरली, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, एंड ऑल्सो कॉमर्स बैकग्राउंड ऑल्सो, तो उनको भी बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, वो हाँ लॉ बैकग्राउंड के हो गए, उनको भी नहीं पता होता है। तो हमने रोल ऑफ वुमेन ऑल्सो 7 टॉपिक, तो हाँ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन का रोल क्या था, और पर्सनालिटी किन को पढ़ना चाहिए, बेसिकली एनी बेसेंट है और रमाबाई है, हाँ बहुत सारे वुमेन्स हैं, उन सबको हमने यस और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए उनको सपोर्ट करने के लिए, और कौन से फील्ड में वुमेन ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, और पॉपुलेशन को पढ़ा, उसके एसोसिएटेड पॉपुलेशन के एसोसिएट इश्यूज को क्या पढ़ा, रेमेडीज क्या है, यस उसमें पॉपुलेशन के जो इश्यूज हैं उसके रेमेडीज जो आप बता रहे हो, तो हर एक उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, हाँ तो वो भी हमने बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से पढ़ा। अर्बनाइजेशन पे भी पढ़ा हमने कि व्हाट कुड बी द टॉपिक्स, एंड यूपीएससी इसमें कितने मार्क्स के लिए पूछ सकता है सवाल, हमने ये भी बीच में डिस्कस किया कि आप कम से कम हर एक टॉपिक पे 200 वर्ड्स के लिए आप तैयारी करना, या 250 वर्ड्स के लिए, या 300 एटलीस्ट 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है कोई भी। तो जो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट या अर्बन डेवलपमेंट या पावर्टी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एसे में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 600 वर्ड्स में या उससे ज्यादा में 1000 वर्ड्स में उस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के यही टॉपिक इधर से उधर होते हैं। यूपीएससी के जो 4 जीएस के पेपर हैं, तो आपको सबसे पहले तो इतना एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक किस पेपर में है, और उसके जो उस पेपर के जो बहुत सारे सब्जेक्ट से लिए गए टॉपिक्स कैसे इंटरलिंक्ड है। जैसे कि इसमें हमारा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ तो ये ग्लोबलाइजेशन तो एक बहुत बड़ा टर्म है इन इटसेल्फ, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो हमने इसको बड़े डिटेल में चेक किया था, हमने इसको बड़े डिटेल में समझा था कि कहाँ पे इंडियन सोसाइटी का पार्ट किस में आता है, उसमें ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, ये भी हमने बड़े अच्छे से समझाया था आपको। हमसे जितनी कोशिश हुई उतनी तो हमने की है, पूरा ट्राई किया करने का। सोशल एम्पावरमेंट का पार्ट इसमें आता है, फिर हमने ये सोशल एम्पावरमेंट और कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशल एम्पावरमेंट को हमने बड़े डिटेल में समझाया, डिस्कस किया, और कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, तो हर एक चीज को हमने बड़े डिटेल में समझा के यूपीएससी के मोटा तो इसमें we discuss in detail what could be the UPSC's approach, वो क्यों चाहता है कि आप ये सारे टॉपिक पढ़ो। तो हमने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के आपको समझाने की कोशिश की पूरे तरीके से। तो नाउ वी हियर द साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, थर्ड लास्ट पॉइंट है
GS पेपर 1 का सेलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें आपके फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं या इसमें? हाँ, इसमें बच्चों को क्या पढ़ना है, इसमें चक्कर आखिरी में 3 टॉपिक पढ़ते हैं बचते हैं जो आपके ज्योग्राफी से लिंक होते हैं। तो आपको ज्योग्राफी में ये 3 सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं यूपीएससी में पेपर 1 में, जिसमें आपके पहले क्या है, पहले आप वेरियस फिजिकल फीचर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, आपके क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, फैक्ट्रीज आपकी कैसी कहाँ पे हो सकती है, उनकी लोकेशन क्या हो सकती है ये पढ़नी पड़ती है। फिर आपको और आपके जियो फिजिकल फीचर होते हैं। तो मैं अगर जियो फिजिकल फीचर की बात, तो जियो फिजिकल फीचर में आपको, या अगर आप वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर अगर आप पढ़ें तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जैसे कि वाटर का एटमॉस्फेयर में क्या आपके यूज है, कितना वाटर, कितने परसेंटेज आपका वाटर है एटमॉस्फेयर में, ओशियन कितने परसेंट है या ओशियन का क्या यूज है, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपके वेरियस आपके अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ कैसे बनती है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो पहला आपका इसमें है क्लाइमेटोलॉजी। अगर आप लेते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, आपका क्लाइमेट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आपका एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आयनोस्फियर है, मेसोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। तो प्रीलिम्स में अगर ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपकी फ्लाइट कौन से फेयर से जा सकती है, तो यूजुअली कहाँ पे आपके होते हैं, फ्लाइट्स कहाँ पे जाती हैं, किस स्फीयर में जाती हैं आपकी हैं, और कहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लेवल आपका कहाँ होता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती हैं। सोलर रेडिएशन का क्या यूज है, हीट बजट कैसी हो सकती है, आपके जो फ्रंट्स हैं, आपके जो एयर मासेस हैं, टेम्परेचर आपका कैसा हो सकता है, किस तरीके से टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ेगा, हीट बजट क्या हो सकता है, सोलर हीट बजट क्या हो सकता है, साइक्लोन्स क्या हो सकते हैं। तो ये आपका सब क्लाइमेटिक फीचर्स हैं देखा जाए तो ये सब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। अब हम आते हैं वाटर पे। वाटर का एटमॉस्फेयर में क्या रोल है। तो वाटर आपका क्या रोल है, सिंपल सी आपको बचपन में आपने पढ़ाई होगा, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल कैसे हो सकती है, और आपके क्लाइमेट चेंज देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ग्रीन हाउस जो आपकी होती हैं। तो वो सारी चीजें आपको वाटर के ही आपका इफेक्ट होता है मोटा मोटा देखा जाए तो। आपको ये पढ़ना पड़ता है कि वाटर का रोल क्या है एटमॉस्फेयर में, ओशियंस का रोल क्या है एटमॉस्फेयर में, आपको ये देखना पड़ता है। ओशियानोग्राफी कह देते हैं इसको एक लाइन में। उसमें ओशियानोग्राफी में अलग चीजें आ जाती हैं, सैलिनिटी ऑफ वाटर, कोरल रीफ्स हो जाते हैं उसमें, ये सारी चीजें आपकी वेव्स कैसे हैं, ओशन आपके करंट कैसी हैं, टाइड्स कैसी हैं, कोल्ड करंट्स, वार्म करंट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्या है रोल, आइलैंड आपके कैसे हैं, कोरल रीफ्स आपकी कैसी हैं, और आपके वेरियस और फिनोमेना जैसे आपके ओशन फ्लड्स आजकल आती हैं वो, बैक वाटर फिनोमेना, ओशन का स्ट्रक्चर कैसा है, रिलीफ फीचर कैसे हैं ओशन में, कहाँ माउंट है, कहाँ पे आपका सी फ्लोर है, कहाँ पे ट्रेंचेस हैं, ये सारी चीजें आ जाता है। सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पढ़ना होता है कि सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जिनसे सॉइल फॉर्म, बहुत सारे फेनोमेनास हैं, एल नीनो है, ला नीनो है, उस तरह के फेनोमेनास ये सारा देखा, ओशियानोग्राफी के इंपैक्ट ओशियानोग्राफी में भी है, क्लाइमेट में भी इनका एक रोल है। तो दोनों ये सब इंटरलिंक सब्जेक्ट हैं। अब आपको अगर देखा जाए तो आपको अर्थ के स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ते हैं कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, अर्थ कैसे बनी, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हाँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जियोग्राफी आपकी अर्थ की कैसी है, रॉक्स कैसे हैं, वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस कैसे हैं, इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाएगा, लावा फॉर्मेशन आएगा, अलग-अलग फॉर्म्स ऑफ लेयर्स, लावा कैसी लेयर्स हैं अर्थ के स्ट्रक्चर में, कन्वेक्शनल आपकी करंट कैसे कैसे फ्लो हो रही है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, इसमें आप कोर पढ़ते हो, मेंटल पढ़ते हो, आप क्रस्ट पढ़ते हो, आप सी फ्लोर पढ़ते हो, वेरियस लेयर में आपको बनाया गया है, आपके अर्थ के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। एस्टिनोस्फेयर होता है जैसे मैम ने कहा, आपकी क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होती है, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। और इनसे रिलेटेड लैंडफॉर्म्स पढ़ने पड़ते हैं। आपको जितनी चीजें पढ़नी है उसके आपको लैंडफॉर्म भी पढ़ना है, जैसे कि आपको ग्लेशियर से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, विंड से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, वाटर से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे ये सारी ज्योग्राफी है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अब आते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जिसमें आपके कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके इंपॉर्टेंट आपके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज यूपीएससी से, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपके वर्ल्ड लेवल पे और आपके इंडिया लेवल पे। बेसिकली मैम इसमें क्या है, जो रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं वर्ल्ड लेवल पे, एग्जैक्टली मोटे मोटे आपको इंडिया में वही पढ़ने पड़ेंगे। जब आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते हो तो ज्योग्राफी को आप होलिस्टिकली पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपको गोंडवाना लैंड है, वहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो वहां से पढ़ना शुरू करोगे ना, बिल्डिंग, यस वो तो कंटिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस वहीं से आपके मिनरल्स कैसे बने, वहां
से स्टार्ट हो जाएगा, एंड रिवर्स, हाउ रिवर्स फॉर्मेटेड, और इसके साथ साथ इक्वेटर लाइन पे आने से प्रेसिपिटेशन एंड इवापोरेशन कैसे रोल करता है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या आपके मिनरल्स मिलते हैं, टेम्परेट रीजन में क्या मिनरल्स मिलते हैं, और फिर आपके उससे ऊपर जो पोलर रीजन है वहाँ क्या मिनरल्स मिलते हैं। ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका यही है कि आप ज्योग्राफी के किसी भी पार्ट को आप अलग नहीं रख सकते, क्योंकि ज्योग्राफी को होलिस्टिकली आप पढ़ोगे, आप एक साथ क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड ऑल लाइक एवरीथिंग, जियोलॉजी, ये सारी चीजों को, सॉइल का फॉर्मेशन को, तो एक साथ पढ़ोगे तो आपकी ज्योग्राफी समझने में आसानी होगी। और जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर ग्रीन बेल्ट है और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, इवापोरेशन ज्यादा होता है, रेन फॉरेस्ट होता है। अफ्रीका में कांगो बेसिन है, वहाँ पे अमेजन है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। हाँ, तो एक ही लाइन पे आपको, यस यस, तो जो सबसे रीजन होता है पोलर बेल्ट के, आप उसके ऊपर, तो उसके बाद जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मिलते हैं, यस, तो आप तो जो वर्ल्ड के पूरे मैप को रख के अगर आप देखोगे तो आपको एक ही तरह के फिनोमेना मिलेंगे सब जगह। तो होलिस्टिकली आप ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करेंगे। जो बेसिक अप्रोच है मैम, वो एटलस के बिना नहीं हो सकती, आपको एटलस तो रखना ही पड़ेगा, साथ में लेके पढ़ना ही पड़ेगा। एटलस को कैसे पढ़ते हैं इस बात पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल वीडियो। अभी हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके जो मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स आपके कैसे कौन कौन से हो सकते हैं। जो आपका आयरन है, मिनरल्स का जब जियोलॉजी आप पढ़ोगे, अर्थ फॉर्मेशन आप पढ़ोगे, वो चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट कंट्रीज जो है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन सी सॉइल है, कैसा मिनरल मिलेगा, ये भी आपको पढ़ना होता है, देखना होता है। जब आप जैसे मैम बता रही हैं ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि सॉइल पे ही आपका सारे आपके जितने भी आपके मिनरल्स हैं, जितने भी आपके फॉरेस्ट है, रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, सारा आपका डिपेंड करते हैं सॉइल पे, और क्या लोकेशन है। ऑल्सो फ्लोरा एंड फौना ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉइल पे, और आपकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसे कह देते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ज्योग्राफिकल लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है आपके रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में। बिना लोकेशन के आपके रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ नहीं सकते। जैसे अगर आप सॉइल देखो तो आप सॉइल में आप क्या देखते हो कि आपकी कहीं ब्लैक सॉइल मिलती है, कहीं पे आपकी रेड सॉइल मिलती है, कहीं पे आपकी ब्लैक, कहीं पे आपकी लेटराइट सॉइल मिलती है, कहीं पे आपकी एलुवियल सॉइल मिलती है। एक चीज यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, यू सेड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किस किस एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर में यूज आती है। ब्लैक सॉइल यूजुअली विल बी ऑन कॉटन एंड शुगर केन। इस तरह की चीजें भी आपको साथ साथ पढ़ के चलो, तभी जाके यू कैन मेक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जी मैम। तो यहाँ पे आप देखो, आप फॉरेस्ट हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, आपके सॉइल हो गया, आपके फार्मिंग का पोटेंशियल हो गया, आपके वाटर रिसोर्सेज हो गए, जो आपके एनर्जी है वो रिसोर्सेज हो गए। तो आपके एनर्जी में क्या है, फॉसिल फ्यूल है, विंड है, सोलर है। आजकल तो बहुत सारे आपके एनर्जी के सोर्सेज आ गए, जैसे बायोफ्यूल आ चुका है आज के टाइम में। तो आपको एनर्जी में एक होलिस्टिक अप्रोच देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी एनर्जी पे वो काम कर रही है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन आज के टाइम में एक बहुत बड़ा होने वाला है फ्यूचरिस्टिक एनर्जी का सोर्स। जैसे लिथियम, लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, वो एक बहुत बड़ा आपका मिनरल है। हाँ, तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट सोर्स मिला है। सर आप यहाँ पे ये देखो, लिथियम इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड विंड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टेबल है। तो आपको जब रिसोर्सेस को पढ़ोगे तो नेचुरल रिसोर्सेस एक चीज है और उसके अंडर में ये सारी चीजें भी आपको समझना है। आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेस पढ़ना है, आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस पढ़ने हैं, आपको कन्वेंशनल एनर्जी पढ़नी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पढ़नी है। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं आपको हैं। फॉर रिसोर्सेस, व्हाट ऑल रिसोर्सेस वी इंपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, एंड व्हाट ऑल नेचुरल रिसोर्सेस भी एक्सपोर्ट। इसी सब टॉपिक में एक टॉपिक आता है आपके फैक्ट्रीज की लोकेशन का। तो फैक्ट्रीज की लोकेशन आपकी कैसे होती है डिफाइन, वो भी आपके क्लाइमेटिक फीचर्स पे होती है डिफाइन, आपकी सॉइल पे, आपके रॉ मटेरियल पे, आपके लेबर पे, आपके लेबर पे, आपके स्किल्ड लेबर पे, आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कैसा आपके पास कैपिटल मार्केट कैसी है। इन सारी फैक्टर्स पे आपकी फैक्ट्रीज करती हैं आपकी बेसिस से। इसको समझने का एक आसान तरीका है, फॉर एग्जांपल शुगर केन फैक्ट्री। शुगर केन फैक्ट्री का रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो शुगर केन फैक्ट्री जनरली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की जगह होती है। और टेक्सटाइल की फैक्ट्री मान लो मार्केट के पास होती है, क्योंकि उसका जो आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है, जितना रॉ मटेरियल होता है उसका 80 to 90% आउटपुट होता है उसका। तो मार्केट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, रॉ मटेरियल एंड लेबर, हाँ ये, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखा जाए तो 3-4 टायर की फैक्ट्री दिखाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी हो गई, तो ये सो ऑन आपको फैक्ट्रीज पढ़नी होंगी। इट्स डिपेंड्स ऑन फैक्ट्री टू फैक्ट्री, और इसमें आपको वेट लूज फैक्ट्री पढ़नी पड़ती है, कैसे आपका वेट प्रोडक्शन का, हाँ जी, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे आपका इंडस्ट्रीज में कैसे मिनरल्स का यूज आ रहा है, कैसे आपके वाटर का यूज है, कैसे आपके सॉइल का यूज है।
ये सब चीजें देखनी होती हैं। अब हम इसमें लास्ट में ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, ये कुछ बेसिक फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनो है, साइक्लोन है, एल निनो है, ला निना है, ग्लेशियर है, लैंडस्लाइड है, फ्लडिंग है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं इसमें। फिर आपके कुछ जियोफिजिकल फीचर्स हैं और उनकी लोकेशन कैसे चेंज हो रहा है, जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स ले लो आप, ग्राउंड वाटर ले लो, ग्लेशियर, आइस कैप्स ले लो, तो इनमें क्या लोकेशन इनकी है, कैसे कैसे आपकी कॉन्टिनेंट पे लोकेशन है, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, फिर उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, वहाँ की लोकल जो वहाँ के लोकल्स हैं उनपे, उनमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे अगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डोमेस्टिक इश्यूज, हाँ जी, तो आइस कैप पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम पड़ता है आपके क्लाइमेट चेंज होने का। इसी तरह आपको फ्लोरा एंड फाउना भी पढ़नी पड़ती हैं, ग्रास लैंड्स पढ़ने पड़ते हैं, फॉरेस्ट पढ़ने पड़ते हैं, मैंग्रोव पढ़ने पड़ते हैं, हैबिटेट पढ़ना पड़ता है, हैबिटेट लॉस कैसे हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें इनमें भी आपको पढ़ना पड़ता है, प्रॉब्लम्स कैसे हैं इसमें क्रिएट हो रही हैं, इम्पैक्ट। विशाल सर सेइंग जी, हर एक वर्ड एक अलग टॉपिक है। हाँ जी, ये हर एक वर्ड अलग टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ोगे तभी जाके एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आंसर। ही सेड फ्लोरा, बहुत बड़े बड़े वर्ड, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये एनवायरनमेंट में भी पढ़ने पड़ेंगे। ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन इसके एनवायरनमेंट जब एंटर करते हो तो एक्चुअली वी एंटर इनटू इंपैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमेना ऑन इम्पैक्ट। यस, क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे क्रिएट हो रही हैं और उनका फ्लोरा एंड फाउना पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारा देखना होता है इसमें। जी, ये सारा पार्ट इसमें कवर करना होता